under straight line method, and depreciation is calculated by deducting salvage value. Salvage value is also known as scrap value from the original cost of the asset, and the balance is divided by the estimated life in years. In other words, a fixed percentage of depreciation is charged on fixed assets every year. This thing has been already discussed in the last class. Last class we discussed the formula of depreciation under straight line method. There we will discuss that the amount of depreciation will be the value of the asset, or rather you can say cost of the asset, plus installation charges minus scrap value or salvage value divided by its useful life or estimated life of that asset. We get the amount of depreciation. Am I clear? सबको समझ में आ रहा है? सबाई बुझते बच्चों? Yes sir. Yes sir. जिसको भी समझ में नहीं आएगा प्लीज बोलिएगा. किसी को, if anybody having any problem regarding understanding the topics, you must share your views with me. Next, under diminishing balance method, under the amount is to be written off as depreciation as a fixed percentage on the opening balance of asset every year. Here opening balance means WDV. Here opening balance means WDV. तो हम लोग क्या करते हैं, हर साल का WDV का ऊपर एक फिक्स परसेंटेज चार्ज करते हैं. Under SLM we charge depreciation on the cost of that asset, on the historical cost of that asset. But under diminishing balance method we charge depreciation on the written down value of that asset. Okay. In this method the amount of depreciation decreases over the years. Point number 2. This method is applied in case of intangible assets and leasehold obligations such as patent right, trademarks, franchises, lease properties, etc. Leasehold obligation means anybody? कोई बोल सकता है क्या leasehold property, leasehold obligations का मतलब क्या है? Anybody? Hello? Am I audible? No sir. No sir. No. Anybody? No. भाई लीजहोल्ड प्रॉपर्टी से मतलब होता है क्या, लीज में कोई प्रॉपर्टी लिया जाता है. अगर बोलता है ना 10 साल का लीज में ये प्रॉपर्टी ले लिया, 10 साल का लीज में ये दुकान ले लिया, 10 साल का लीज में मैं ये जमीन. The lease means rent. लीज में टर्म होता है. लीजर रेंट में क्या होता है, लैंड ओनर और टेनेंट का साथ रिलेशन होता है. लीज में क्या होता है, लीजर और लीजी का साथ लेसर और लीजी का रिलेशनशिप होता है. इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम रेंट. ओके. इन लीज एग्रीमेंट यू कैन फाइंड दैट द लीजर एंड द लेसी. ओके. Okay sir. एवरीबॉडी इट इज क्लियर ना? सबको क्लियर है? हेलो, सबको क्लियर है ना? हाँ, नो सर. तो किधर प्रॉब्लम है बोलो, किधर प्रॉब्लम है? लीजहोल्ड ऑब्लिगेशन মানে লিজ মানে হচ্ছে গিয়ে কোন জিনিসকে লিজ নেওয়া, একটা তার এগেইনস্ট একটা লিজ রেন্টাল দেওয়া হয়. যেরকম ধরো রেন্ট কি হয়, ধরো সাপোজ 10 মাস পর পর বা এরকম 1 বছর পর পর এটা বা 2 বছর পর পর এটা রিনিউয়াল হয়. লিজে সাধারণত ব্রিফলি বুঝে নাও, লিজে সাধারণত 10 বছর 12 বছরের জন্য একটা প্রপার্টিকে লিজ দেওয়া হয় এবং সে প্রপার্টিটাকে যে লিজ নেয়, যার প্রপার্টি ওনার তার নাম হচ্ছে লেসার, আর যে লিজ নেয় তাকে বলে লেসি. ঠিক আছে? তো লেসি ওটাকে ইউজ করে এবং আফটার 10 ইয়ার্স পর পর সেই এগ্রিমেন্টটাকে রিনিউ করা হয়. বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার. অনেকটা রেন্টের মতনই, অনেকটা, পুরোটা না. ঠিক আছে? Yes sir. Yes sir. सबको समझ में आ गया? हेलो, सबको समझ में आया? Yes sir. हाँ सर. Those students whose mother tongue are not Bengalis, you also respond. ओके. आप लोग जिन लोगों का मदर टंग हिंदी नहीं है प्लीज बोलिएगा कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा है कि नहीं. ठीक है? एज वेल एज बेंगली स्टूडेंट्स जिन लोगों का मदर टंग बेंगली है ताराओ बोलबे, एवं जिन लोगों का मदर टंग हिंदी है वो लोग भी अपना व्यू शेयर कीजिएगा प्लीज. नहीं समझ में आएगा तो प्लीज बोलिएगा मेरे. नेक्स्ट पॉइंट,
उसका साथ under diminishing balance method, this method is applied in those assets which have a long life, like plant, machinery, land, building, etc. This statement is very clear. Now we move to next point, that is point number 3. Under this method, the value of asset becomes 0 at the end of the working life. In last class, we see that under SLM, the value of an asset becomes 0 at the end of its useful life. It may be, the useful life may be 10 years, 5 years, 8 years, 6 years, 7 years, whatever it may be. At the end of the useful life of an asset, its value will be 0. Under diminishing balance method, the value of an asset does not reduce to 0 even after the end of its working life. So under diminishing balance method में क्या होता है? After the end of it, सोच लीजिए कि assume कीजिएगा एक asset का useful life है 10 years. After 10 years, it may have some residual value. It may have some residual value. I use the term may. It may have some residual value. But under SLM, the residual value, there will be no residual value. Under SLM, there should be, I use the term should. Under SLM, there should be no no value at the end, no value at the end of its useful life. But under diminishing balance method, there is usually some balance at the end of its useful life. Am I clear? Is point number 3 Yes, clear sir. to everybody? একটা এক্সাম্পল দিলে ভালো হতো। एग्जाम्पल धरो একটা অ্যাসেটের দাম 1 লাখ টাকা पकड़ लीजिएगा हिंदीতে বলছি যারা বাংলা বেঙ্গলি মাদার টাং তারা তো হিন্দি বোঝো হ্যাঁ কি না जिन हाँ लोगों सर, का हाँ सर, हाँ सर। Yes, sir. কারণ অনেক স্টুডেন্ট ক্লাসে যাদের মাদার টাং হিন্দি না বাংলা না তারাও আছে তো আমি হিন্দিতে বলছি তাহলে সবাই বুঝতে পারবে তারপরেও যদি বাংলা যাদের মাদার টাং তারা যদি বুঝতে অসুবিধা হয় বলবে আমি আবার বাংলায় বলে দেবো ওকে নাও লেটস মুভ let's take an example. Suppose an value of an asset is 1 lakh. Its useful life is 10 years. Value of an asset is 1 lakh. Its useful life is 10 years. After 10 years, the value of the amount of depreciation per year will be anybody. The amount of value of an asset is 10 lakh. Its useful life is value of an asset is 1 lakh. Its useful life is 10 years. The rate of the amount of depreciation per year will be. The amount of depreciation per year will be, or the rate of depreciation per year will be. Anybody? অসুবিধা হচ্ছে আমি লিখে দেখাবো হ্যালো হ্যাঁ কি না আমি কি এক্সাম্পলটা লিখে দেখাবো জ্যাম বোর্ডে হ্যাঁ স্যার একটু লিখে দেখান স্যার Here life means life of the asset 10 years. Therefore amount of depreciation will be amount of depreciation SLM is equal to rupees 10,000 per year. Is it clear? Yes, sir. Is it clear? But হ্যাঁ স্যার now you will calculate amount of depreciation under the Sir, the rate per percent per year, sir. will be 10%. Okay, It's okay, quite sir. clear.
Okay, sir. 10% na? Under diminishing balance, what will be the amount of depreciation? It will vary per year. If you calculate the amount of depreciation under diminishing balance method, you will found some residual value at the end of 10 years. Will you calculate it? आप लोग कैलकुलेट करेंगे क्या अभी क्लास में ना घर में कैलकुलेट कर लीजिएगा. हेलो, प्लीज डू इट. चलिए कीजिए. The amount of depreciation under diminishing balance method is not fixed, comma, it will समझ में आया? Yes, sir. Hello? Okay, there will be some residual value. कौन क्वेश्चन किए थे आप? आपका नाम क्या है? जो क्वेश्चन করেছিলে কে क्वेश्चन করেছিলে তার নামটা কি? আমি স্যার অর্পণ। বুঝতে পেরেছো অর্পণ? হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। বোঝা গেছে কি যায়নি? একবার বাড়িতে ক্যালকুলেট করে নিয়ে দেখে নিও, একটা বছরের শেষে একটা রেসিডুয়াল ভ্যালু পড়ে থাকবে। বোঝা গেছে? এটা স্যার তো আগের দিনই করেছিলাম, ওই যে মানে প্রতি বছরে এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, আর ওই স্ট্রেট লাইন মেথডে ওইটা সেমই থাকবে, মানে সেমই থেকে যাবে। তার জন্য একটা রেসিডুয়াল ভ্যালু পড়ে থাকে বছরের শেষে। At the end of the every year, at the end of its useful life, there will be a residual value. Okay, clear or no? Orpon, sorry. Hello, Orpon. ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। Okay. Sir, diminishing balance method মানে আগের দিন লাস্টের দিকে যেটা বুঝিয়েছি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, পরের দিকে যেটা বলি। বোঝা গেছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। समझ में आया? Okay. হ্যাঁ স্যার। There will be some zero even after the useful life. Under this method, the rate and the amount of depreciation under, I mean to say, under SLM. Under SLM, the rate and amount of depreciation remains equal every year. And under diminishing balance method, even if the rate of depreciation remains same, but the amount of depreciation decreases every year. But the amount of depreciation decreases every year. Is it clear? यस सर। Yes, sir. Everybody, जिन लोगों का मदर टंग हिंदी है उन लोग भी क्लियर है ना? ओके, प्लीज ये सब नो बोलिएगा। Sir, can you repeat? ओके फाइन। अंडर पॉइंट 4 लास्ट क्लास आप थे क्या? हेलो, आपका नाम क्या है प्लीज? Yes, sir. थे। अच्छा थे ना, आपका नाम क्या है प्लीज बोल सकते हैं? Sir, Oric Roy. Oric Roy. अच्छा। Under this method, the rate and the amount of depreciation remains equal every year. That is, I mean to say here, it mean to say that under SLM, the amount of depreciation will be same every year. As in the previous example, we find that the amount of depreciation every year is rupees 10,000. Up to clear? Either of the clear? इतना दूर तक clear है ना Onik Roy? Hello Onik. Yes, sir. Okay. Now we next to under diminishing balance method. Under diminishing balance method, even if the rate of depreciation last method
प्रीवियस एग्जांपल में कितना था? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रीवियस एग्जांपल में कितना था? कोई बोल सकता है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 9999 ना 10% होगा। लास्ट एग्जांपल में डेप्रिसिएशन इज 10%, जो जैम बोर्ड में मैं yes करके sir yes दिखाया। sir yes sir Yeah, rate of depreciation is 10%. Yeah, rate of depreciation is 10%. Yeah, rate of depreciation is 10%. Rate of depreciation is equal to 10%. Clear na? Rate of depreciation is 10% here. Yeah, rate of depreciation is 10%. Okay. Okay. But under diminishing balance method, even if the rate of depreciation under diminishing balance method, it will the rate of depreciation will also be 10%. But the amount of depreciation decreases every year. Under diminishing balance, the rate of depreciation will be same every year, but the amount of depreciation will diminish every year. It is this sentence, this part of the sentence is very important, that the amount of depreciation will decrease every year. The amount of depreciation will decrease every year. It is clear to everybody? Clear na? Yes or no? Yes, sir. Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next, we move to point number 5. This method does not get recognition under Income Tax Act. Very important. This under Income Tax Act 1961, SLM will not be followed. SLM was not recognized. Under Income Tax Act 1961, straight line method of depreciation is not recognized. Under Income Tax Act, diminishing balance method is recognized. The point number 5 is very important for MCQ question. Okay, clear? Yes, sir. मतलब इस सेंटेंस का मतलब होता है इनकम टैक्स एक्ट है, यदि आप लोग अगर एसएलएम में डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो उसको डिसअलाउ कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब अलाउ नहीं करेगा. अंडर इनकम टैक्स एक्ट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड is allowed for charging for calculating depreciation. Rather, you can say for calculating depreciation under Income Tax Act. Under Income Tax Act, diminishing balance method is allowed for computing depreciation. Please note it down. Under Income Tax Act, please note it down. Under Income Tax Act, diminishing balance method is allowed for computing depreciation. Clear? I repeat it once again. Under Income Tax Act 1961, I repeat it once again. Under Income Tax Act 1961, diminishing balance method is allowed for computing depreciation. Clear? Yes, sir. लिख लिया आप लोग सब. ये MCQ क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दिस सेंटेंस. नेक्स्ट पॉइंट, we can we move to point number 6? Hello, can we move to point number 6? Please yes or no बोलिएगा. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर किसी भी एक स्टूडेंट का भी प्रॉब्लम होगा प्लीज बोलिएगा. अंडर नाउ वी मूव टू पॉइंट नंबर 6. अंडर दिस मेथड दो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम बट रिपेयर एक्सपेंस विल इंक्रीज ओवर द टाइम. अंडर एसएलएम क्या होता है, जितना भी एसेट पुराना हो जाएगा उसका रिपेयरिंग एक्सपेंस बढ़ जाएगा. जितना भी एसेट पुराना होगा उसका रिपेयरिंग एक्सपेंस बढ़ेगा. अंडर डब्ल्यूडीबी द अमाउंट ऑफ সারানোর খরচা, অ্যাসেট পুরনো হলে সারানোর খরচা বেড়ে যায় তো নাকি, সেটাই বলেছি. Under this method, the amount of depreciation decreases over the year, but expenses on repair increasing gradually. This point under the point number 6 is same for both SLM and WDB. The point number 6 is same. इधर फिक्स रहता है डेप्रिसिएशन, उधर डेप्रिसिएशन डिक्रीज करता है, but the expenses on repair increases. Under 7,
point number 7, under this method, depreciation is considered on the basis of time factor. Under diminishing balance method, it is considered on the basis of use factor. Very important. Point number 7 is very important for MCQ point of view. Point number 7 is very important for MCQ point of view. Now, under this method, please note it down. Under SLM method, we will consider time factor, but under diminishing balance method, we consider use factor. Very important. Time factor इधर use किया जाता है, इधर use factor को consider किया जाता है. Please note it down. Under SLM, we consider time factor for computing depreciation, but under diminishing balance method, we consider use factor for computing depreciation. Is it clear to all of you? Yes or no? Please. স্যার লাস্ট পয়েন্টটা একটু বলবেন স্যার? আচ্ছা, সময়ের সাথে হয়। আমরা কি করে 10 বছর প্রত্যেক বছরই 10,000 টাকা করে डेप्रिसिएशन चार्ज করে গেলাম। मतलब क्या हुआ लास्ट एग्जांपल में, एज द एग्जांपल वी डिस्कस्ड अर्लियर इन टुडेस क्लास, क्या किया उधर, क्या किया हर साल में एसएलएम में हर साल में मैं 10,000 करके डेप्रिसिएशन यूज किया, टाइम फैक्टर हर साल में 10,000 किया। मगर क्या किया जाता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, हम लोग क्या करते हैं यूज फैक्टर, कितने एसेट को यूज किया उसका ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। समझ में आया? फर्स्ट ईयर्स में ज्यादा यूज होता है तो उसके लिए ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। एज द टाइम गोज ऑन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल डिक्रीजेस। ओके, इज इट क्लियर टू यू? हाँ ऑल ऑफ सर। यू? ओके, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक? यस और नो प्लीज। किसी का भी प्रॉब्लम डाउट है, difference between diminishing balance method and state SLM and diminishing balance method, please say, otherwise I will move to the next topic. No sir, no doubt sir. Okay. अपना कॉपी में हेडिंग दीजिएगा depreciation on vesting assets. Now we'll discuss depreciation on vesting assets. वेरी इंपॉर्टेंट। इधर से कभी शॉर्ट नोट आ सकता है, कभी शॉर्ट नोट दिया जाता है, ठीक है ना, और नहीं तो एमसीक्यू 1 मार्क्स का आता है, कभी भी इधर से शॉर्ट नोट भी आता है। Now first of all we'll discuss what do you mean by vesting assets. बहुत एसेट्स का नाम सुना है, वेस्टिंग एसेट्स क्या है? Vesting assets are those assets which are continuously depleted and losses its value at the end of a particular time period for earning revenue. Examples are oil well, quarry, mines, etc. I repeat this and repeat the definition of vesting asset once again. Vesting assets are those assets which are continuously depleted. Depleted means decrease. Depleted means decrease, घट जाना, and losses its value. Value घट जाता है. At the end of a particular time period, we consider, in accounting we generally consider a time period of maximum of 12 months, starting from 1st April to 31st March. Particular time period for earning revenue. Examples are oil wells, quarry, mines, etc. ऑयल वेल में हम लोगों को क्या मिलता है? एनीबॉडी? ऑयल वेल में हमको क्या मिलता है? तो ऑयल वेल में खोदेंगे तो क्या मिलेगा? हेलो प्लीज, ऑयल वेल खोदेंगे तो क्या मिलेगा? So oil sir. हाँ, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? तेल, तेल का रिजनरेट होता है क्या? तेल का No regenerate no sir, it regenerate नहीं होता it है. takes very many years. Many years, but it will not regenerate. Yes sir. It is natural resources. It has certain limitations. It cannot be regenerated. Okay? तो क्या Okay, होता है? sir. ये क्या कोल माइंस में कोयला हम लोग काट लेंगे तो रिजेनरेट होगा क्या? कोल No माइंस sir. No sir. कोयला काट कर निकाल लेंगे, रिजेनरेट होगा क्या? नहीं होगा। मगर मशीनरी खराब होगा तो दूसरा एक मशीनरी बना सकते हैं, है कि ना? Yes sir. Yes sir. तो Yes ये sir. एसेट ऐसा एसेट है, हम लोग यूज कर लेंगे तो वो रीजेनरेट नहीं होता है, तो इसलिए इसको वेस्ट मतलब
वेस्ट का हिंदी और बंगाली में कोई बोलेगा वेस्ट का मतलब क्या है? नष्ट। नॉर्मल স্যার নষ্ট স্যার। নষ্ট, হ্যাঁ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অ্যাসেটটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। তো इसलिए ये the term used was continuously depleted, continuously depleted. The term used here is continuously, जितना खोदेंगे उतना ही जल्दी खत्म होगा। समझ में आया? समझ में आया सबको? Yes, sir. ইয়েস স্যার। एटसेट्रा। इधर से एमसीक्यू आता है वेस्टिंग एसेट्स का। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन वेस्टिंग एसेट्स, क्या क्या जरूरत है वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए, क्या क्या जरूरत है? डेप्रिसिएशन इज यूज्ड अप वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? यूज्ड अप वैल्यू, मतलब जो वैल्यू को हम लोग, जो चीज को हम लोग यूज कर लिए, जो वैल्यू का मॉनेटरी टर्म्स में उसको कन्वर्ट करते हैं, जो अमाउंट ऑफ मॉनेटरी वैल्यू हम लोग यूज कर लिया, उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन इज द यूज्ड ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर अर्निंग रेवेन्यू। मतलब क्या होता है? अगर मैं एक मशीनरी चला रहा हूं, कोई सामान प्रोडक्ट बना रहा हूं, मशीनरी चलाकर कोई सामान नहीं तो एनी एक्टिविटीज व्हिच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं, तो वो उस प्रोडक्शन में करके हम लोग सेल करके पैसा कमाते हैं। इसलिए बोला जाता है डेप्रिसिएशन इज यूज्ड ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर अर्निंग रेवेन्यू ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड इज रिकवर्ड फ्रॉम करंट रेवेन्यू। उसको डेप्रिसिएशन को भी हम लोग चार्ज किस साल करते हैं? जिस साल का प्रॉफिट हम लोग लेते हैं। समझ में आया कि नहीं इस सेंटेंस का मतलब? फिर एक बार इस सेंटेंस को एक बार ग्रो थ्रू कीजिएगा। सर बोले देना। अच्छा, अगर आप लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, अगर स्कूल का जाने आने का खर्चा, स्कूल में जाने आने का, आपका स्कूल सोच लीजिए घर से दूर था, मे बी यू यूज स्कूल कार्स, स्कूल बसेस और एनी अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो उस टाइम स्कूल जाने आने का खर्चा जो आता था, एज्यूम कर लीजिएगा मंथली 1000 रुपीज आता था, 1000 रुपीज मंथली आता था स्कूल जाने आने का खर्चा। अभी कॉलेज जाने आने में खर्चा 500 रुपीज आता है। तो आप क्या करते हैं? स्कूल जाने का खर्चा क्या कॉलेज जाने आने के खर्चे के साथ ऐड करेंगे क्या? हाँ या ना? नो सर, नो सर। वेरी गुड, राइट आंसर। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, जो जिस साल का प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं, उस प्रोडक्ट को बेचकर जो पैसा कमाऊंगा, जो प्रोडक्ट, कोई मशीनरी क्या करेगा, एक लेट्स टेक एन एग्जांपल, मशीनरी पेन बना रहा है, एज्यूम कीजिएगा ओग्नि जेल यूज एंड थ्रो पेन सबको पता है क्या? यस और नो? यस सर, यस Yes, सर। sir. ओग्नि जेल यूज एंड थ्रो 4 रुपया वाला पेन पता है ना सबको? एक में मशीनरी खरीदा 1 लाख रुपया देकर, वो ओग्नि जेल यूज एंड थ्रो पेन बनाता है। तो मैं वो पेन बनाकर, वो मशीनरी चलेगा 10 साल, तो हर ईयर डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1 लाख रुपया का ओग्नि जेल पेन बनाने का एक मशीन खरीद लिया, वो चलेगा 10 साल, और उस 10,000 ही आसपास। हर साल डेप्रिसिएशन कितना होगा? हर साल डेप्रिसिएशन कितना होगा? एनीबॉडी? 10,000। 10,000। वेरी गुड। तो वो मशीन पेन, वो ओग्नि जेल पेन में बेचकर मैं कमाता हूं, मैं सेल कर कमाता हूं हर साल 2 लाख रुपया। तो वो जो मशीनरी जो पेन बनाता है, वो सेल कर मैं हर साल कमाता हूं 2 लाख रुपया। जो 10,000 रुपया डेप्रिसिएशन होगा, वो मैं किसका साथ एडजस्ट करूंगा? वो जो 2 लाख रुपीस जो मैं सेल कर कमाता हूं, उसका साथ ही एडजस्ट करूंगा। हाँ या ना? यस सर, यस सर। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैं गौर से सुनिएगा। मैं एक ओग्नि जेल पेन बनाने का मशीन खरीद लिया, उसका दाम है 1 लाख रुपया, उसका यूजफुल लाइफ है 10 साल। तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स इज इक्वल टू 10,000 सर। 10,000। अब वो ओग्नि जेल पेन बनाकर मैं सेल कर हर साल मैं कमाता हूं 2 लाख रुपया। कितना कमाता हूं? प्लीज सर 2 लाख, 2 लाख सर। अब जो डेप्रिसिएशन होता है 10,000, जो मशीनरी यूज कर मैं पेन बनाता हूं, उसका खर्चा मैं 2 लाख के साथ ही लेस करूंगा ना, क्योंकि वही मशीनरी तो मैं Yes, यूज sir. कर पेन बनाकर पैसा कमाता हूं, तो यस सर, उसको यस साथ ही सर। मैं खर्चा करूंगा। आपका क्या थर्ड, जो भी है अभी सेकेंड, कोई थर्ड सेमेस्टर नहीं तो 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट होगा, आपका 5th सेमेस्टर का खर्चा, किताब जो खरीदता वो 6th सेमेस्टर 8th सेमेस्टर का साथ खर्चा के साथ एडजस्ट करेंगे क्या? हाँ या ना?
आप लोग जो अभी ट्यूशन ले रहा है इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर्स का जो खर्चा लग रहा है उसका जो ट्यूशन फीस लग रहा है वो क्या आप लोग 8 सेम में अगर कुछ ट्यूशन लेंगे तो उसका साथ No, एडजस्ट sir. करेंगे क्या? No, sir. No, नहीं sir. करेंगे No, ना, sir. यही बात इधर बोला। जो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स होगा वो उस साल का ही रेवेन्यू का साथ, मतलब उस साल का ही इनकम, या रेवेन्यू मींस इनकम, रेवेन्यू मींस इनकम, इनकम के साथ ही मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब जिस टाइम ऑफिस जाएंगे, ऑफिस जाने में बस से जाएंगे, सोच लीजिए बस टैक्सी जिसमें जाएंगे, ऑफिस जाने आने का खर्चा किसका साथ एडजस्ट करेंगे? सैलरी के साथ ही ना एडजस्ट करेंगे, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कोई Yes. चीज बोला है इधर। समझ में आया सेंटेंस का मतलब? Yes, sir. Yes, sir. सबको हाँ सर, हाँ सर। नेक्स्ट, the reason for providing depreciation on vesting assets are given below। क्यों हम लोग depreciation on vesting asset प्रोवाइड करते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ रियल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ट्रू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने के लिए करते हैं। बिजनेस, हम लोग बिजनेस करते क्यों हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। हेलो, बिजनेस क्यों करते हैं? सही ना? बिजनेस करते हैं Sir, प्रॉफिट profit कमाने के अच्छा लिए। ना है। हाँ कभी सर। कभार कभी कभार नुकसान भी हो जाता है, कभी कभार नुकसान भी हो जाता है। मैं टर्म यूज किया कभी कभार। मे बी देयर मे बी लॉस, मे बी देयर मे बी लॉस। ठीक है, 10 साल बिजनेस किया, मे बी 1-2 साल में आपको घाटा भी हो सकता है, तो इसलिए और लॉस लिखा है। तो हाइफन देखा क्या लिखा है? वेस्टिंग एसेट्स आर टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशंस टू अर्न प्रॉफिट बाय यूजिंग इट इन द बिजनेस। तो जो कोई भी एसेट हम लोग क्यों बिजनेस में यूज करते हैं? तो अर्न इनकम, टू अर्न प्रॉफिट। इज इट क्लियर? जो पेट्रोलियम का कंपनीज है वो लोग क्या करता है? जो लोग मिनरल ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है, जैसे इंडिया में कौन मिनरल ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है? कौन सा कंपनी पता है? इंडिया में कौन सा कंपनी मिनरल नेचुरल ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है? तेल, कौन सा कंपनी इंडिया में तेल मिट्टी का अंदर नहीं तो सी का अंदर से तेल निकालता है? पता है कंपनी का नाम? है सर अदानी। अदानी तो नया नया है, पुराना भी एक है, नाम है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पता है ओएनजीसी का नाम? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इंडिया में करता है। यस रिलायंस करता है, रिलायंस भी करता है इंडिया में। ठीक है, ओएनजीसी का भी है, रिलायंस का भी है। और नॉर्थ ईस्ट में आसाम में करता है ऑयल इंडिया, और आसाम में करता है नॉट इंडियन ऑयल, ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया जितना भी इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ये सब है क्या? मार्केटिंग कंपनी। क्या क्या? ये पेट्रोलियम को मार्केट करता है। ठीक है, बेसिकली क्या करता है? जो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, ये सब क्रूड ऑयल निकालते हैं। क्रूड ऑयल मतलब Petroleum, sir. Raw petroleum. रॉ ऑयल को फिर क्या इसमें रिफाइनरी में आता है। रिफाइनरी में रिफाइन होने के बाद पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब बनता है, गैसोलिन ये सब बनता है। फिर उसका बाद ये क्या करता है? इंडियन ऑयल, नहीं तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नहीं तो भारत पेट्रोलियम। अभी भी रिलायंस का भी पेट्रोल पंप है, इधर कम मिलेगा, बंगाल में देखने में कम मिलेगा। एसआर ऑयल का भी पेट्रोल, एसआर ऑयल अभी बैंकक्रप्ट हो गया, जो भी है। तो इस सब का भी पेट्रोल पंप्स है, तो उधर से क्या होता है? पेट्रोल सेल किया जाता है। तो इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इस लोगों को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बोला जाता है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज। ओके ओके, तो ये सब तेल उठाता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कौन कंपनी प्रोड्यूस करता है तेल? पता है? आरामको। आरामको सऊदी कंपनी है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल। आरामको, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड कंपनी इन द वर्ल्ड। ARAMCO, आरामको, सऊदी अरब का गवर्नमेंट का कंपनी है। आरामको वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड कंपनी इन द वर्ल्ड। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ था 3-4 साल पहले, सबसे हाईएस्ट प्राइस में लिस्टिंग हुआ था ये। ओके, हाईएस्ट प्रीमियम में लिस्टिंग हुआ था। फॉर योर नॉलेज पर्पस आई ओनली डिस्कस। ये बात चल रहा है कि रिलायंस पेट्रोलियम का नाम सुने? रिलायंस पेट्रोलियम, एनीबॉडी रिलायंस पेट्रोलियम का नाम सुना है? हेलो, रिलायंस पेट्रोलियम का नाम सुने आप लोग? हाँ या ना? No, sir. यस नो, सर। सुना है ना रिलायंस पेट्रोलियम? जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसका अंदर में बहुत है, रिलायंस रिटेल भी है, रिलायंस जियो भी है, रिलायंस जियो अंडर रिलायंस प्लेटफॉर्म्स। ओके फाइन। तो जो पॉइंट में था, तो आरामको का साथ बात चल रहा है कि रिलायंस पेट्रोलियम का 20% स्टेक आरामको खरीदेगा, क्योंकि मैक्सिमम बात चल रहा है अंडर निगोशिएशन स्टेज। ठीक है ना? 20% स्टेक रिलायंस पेट्रोलियम आरामको को बेचेगा। आरामको इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल। It is one of the most valued company in the world.
फॉर जनरल नॉलेज पर्पस आई ओनली डिस्कस इट विद यू। ओके क्लियर। इंडिया में कोयला कौन उठाता है पता है? कोयला कोयला कोल 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 कौन उठाता है? कोल माइंस कौन चलाता है इंडिया में? कोयला मैक्सिमम कौन सा प्रोड्यूस कौन करता है पता है? एनीबॉडी? कोल सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है इंडिया में कोल इंडिया। कोल इंडिया का नाम सुना है? कोल इंडिया का कुछ सब्सिडीज है। धनबाद में किसी का घर है? धनबाद में कभी गए हैं आप लोग? धनबाद में है ईस्टर्न कोलफील्ड, उसका बहुत सब्सिडरी है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स है, महानदी कोलफील्ड्स है, सेंट्रल कोलफील्ड्स है, ये सब इंडिया में कोयला जो उठाता है वो कोल इंडिया उठाता है। आप लोग से पढ़ाई करते हैं, पेपर में पर कुछ नहीं पढ़ते। आप लोगों का जीके बहुत वीक है, प्लीज पेपर भी पढ़िएगा, ठीक है ना। सिर्फ पढ़ाई करने से लाइफ में कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? हाँ यस सर सर। पर भी पढ़िए, आप लोगों का जीके बहुत खराब है, बेसिक चीज पता नहीं है। आई एम नॉट इंसल्टिंग यू बट आई एम ट्राई टू रेक्टिफाई योर प्रॉब्लम, फ्यूचर में काम आएगा। आज इंडिया, आज वर्ल्ड कप में कौन जीता? वर्ल्ड कप मैच में देखे क्या? सऊदी अरेबिया সৌদি আরব সৌদি আরবিয়া জিতেছে। কবে জিতেছে? হ্যাঁ দুই একে হ্যাঁ স্যার 2-1 স্যার। ইয়েস স্যার 2-1 আর লাস্ট 7-8 মিনিট আমি দেখতে পারিনি, তো যাই হোক মেট্রোতে ছিলাম, এনি প্রবলেম। তো জিতে গেছে, ইয়েতে 2-1 জিতেছে না। ओके, तो प्लीज गो थ्रू पेपर पढ़िएगा, नहीं तो टाइम भी यूज कीजिएगा, तो आप लोगों का जीके ठीक कीजिएगा, नॉलेज बेस। ओके फाइन, नेक्स्ट वी मूव टू, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज है। मैं आप लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में काम आ सकता है, तो इसलिए मैं बोला आपको। न्यूज़पेपर पढ़िएगा ठीक से, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िएगा, टाइम्स ऑफ ওকে इंडिया স্যার, ওকে স্যার, ওকে স্যার। Full stop. Continuous wasting assets are taken by the organization to earn profit by using it in the business. Full stop. Continuous use of these assets in the business causes fall in the value of the asset over time. अगर ज्यादा यूज करेंगे तो ये वैल्यू घट जाएगा एसेट का। Therefore, sufficient amount of depreciation is provided out of profits for the current year to treat its expense. तो ये एक्सपेंस को ट्रीट करने के लिए मेरे को हर साल प्रॉफिट से कुछ पैसा हटाकर रखना पड़ता है। If depreciation on vesting asset is not provided in the books of accounts, profit or loss reflected by profit and loss account does not reflect that correct picture. अगर ये सेंटेंस को मैं समराइज बेसिकली बोलूं तो, अगर we in accounting we follow matching concept. In accounting we follow matching concept. मतलब matching concept का मतलब क्या होता है? जिस साल का खर्चा उस साल का ही तुम इनका, जिस साल का इनकम का साथ उस साल का ही खर्चा एडजस्ट कीजिएगा। जिस साल का इनकम होगा उस साल का ही खर्चा के साथ आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। तो क्या होता है? तो ये बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन जिस साल का प्रॉफिट होगा, नहीं तो जिस साल का रेवेन्यू होगा, नॉट प्रॉफिट, जिस साल का रेवेन्यू होगा, आई मीन टू से जिस साल का सेल होगा उसका साथ, उस साल का सेल के साथ ही मेरे को उसका डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इतना ही आप लोग याद रखिएगा, इसलिए अच्छा है, नहीं तो ज्यादा पीछे जाऊंगा तो पूरा अकाउंटिंग का मेरे को कंसेप्ट देना पड़ेगा। इट इज नॉट फिजिबल at this point of time. Okay, clear? Yes or no? Yes, Yes sir. Okay. Next, we move to point number 2. Showing true and fair view in the balance sheet. Balance sheet is a statement, here बोल दिया गया है balance sheet का मतलब क्या होता है? Balance sheet is a statement which is prepared on the last day of the accounting year. Which is the last day of accounting year? Anybody? 31st March. Very good. So Sir, 31st March sir. Very good, very good. 31st March of every year is the last day of accounting year. Which is the first day of the accounting year? Sir, 1st April. 1st April. 1st April. Okay. तो लास्ट डे ऑफ एवरी ईयर। तो डेप्रिसिएशन हम लोग कब चार्ज, किस डेट में चार्ज करते हैं? ऑन द लास्ट डे, मतलब 31st मार्च को हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उन एसेट का वैल्यूज का ऊपर। लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू शो द ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द business. If depreciation is not provided in the books of account, the value of wasting asset will be overstated in the balance sheet, and the balance sheet cannot reflect the true and fair view of the state of affairs, and as a result there will be a misleading picture for its use. तो misleading picture आएगा कि कितना मेरा assets या liabilities है। रियली क्या होता है सुन लीजिए मेरे पास। क्या होता है ना, गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में मैं बात बोल रहा हूँ, क्या करता है गवर्नमेंट ऑफ, ये जो इंडिया का मिट्टी का अंदर जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है, आई मीन टू से इंडिया का मिट्टी का अंदर और इंडियन इकोनॉमिक जोन, मतलब क्या, 22 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट, ठीक है ना, इकोनॉमिक जोन का अंदर जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है, इन लोगों का मालिक कौन है पता है? इन लोगों का मालिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या बोला? क्या बोला?
इंडिया का अंदर जितना भी तेल गवर्नमेंट ऑफ मिलेगा, इंडिया सर। जितना भी तेल मिलेगा, जितना भी कोयला मिलेगा, इस सब का ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, टेंडर फ्लोट करता है कि इस जगह को मेरे को तेल मिलेगा, कौन लेना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, पहले टेस्टिंग करता है, उधर टेस्टिंग करो कितना तेल है इधर, तो आएगा रिपोर्ट आएगा, बोलेगा कि इधर इतना इतना बैरल तेल है, इतना मिलियन बैरल्स तेल मिलेगा। अब कौन कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना रॉयल्टी देगा, बोलेगा, उसमें पार्टिसिपेट में भी बिडिंग में पार्टिसिपेट करेगा इंडिया का ओएनजीसी, रिलायंस पेट्रोलियम, केन एनर्जी, CRAIN ट्रेन एनर्जी, ठीक है ना, वो भी एक राजस्थान में है उसका। तो ये सब कंपनीज पार्टिसिपेट किया। जो जितना ज्यादा रॉयल्टी गवर्नमेंट को देगा, वो ऑयल फील्ड उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉट कर देगा। तो रॉयल्टी किसका ऊपर दिया जाता है, प्रोडक्शन का बेसिस में। जो जितना तेल खोदेगा उतना तेल उठाएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पर बैरल का बेसिस में रॉयल्टी देगा, ठीक है ना। अब रॉयल्टी क्या हो गया, अब वो तेल उठाएगा और बाहर बेचेगा, तेल उठाएगा, रिफाइन करेगा और बाहर बेच देगा, ठीक है ना। ये आसपास एक रिफाइनरी है, हल्दिया नाम सुना, हल्दिया में एक रिफाइनरी है इंडियन ऑयल। यस सर, यस सर, यस सर। हल्दिया में एक है, पारादीप में एक तो है, बड़ावनी में एक तो है। ये सब इंडियन ऑयल का रिफाइनरीज है। इधर क्रूड ऑयल आता है तो रिफाइन होकर जाता है, रिफाइन होकर पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, केरोसिन, ये सब बनता है। तो ये सब क्या करता है, तेल बेचता है। तो अब तेल बेचता है तो गवर्नमेंट का क्या है, जो तेल है गवर्नमेंट का एसेट है, तो गवर्नमेंट रॉयल्टी लेता है, गवर्नमेंट का इनकम है, उसका साथ वो क्या करता है, वो जो तेल का जो वैल्यू, वेस्टिंग एसेट्स का जो वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, उसको एडजस्ट करते हैं। समझ में आया? वही कॉन्सेप्ट जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन को था, वही कॉन्सेप्ट इधर भी है। समझ में आया? जिस साल का मैं रेवेन्यू कमाता हूँ, उस साल का ही सब में डेप्रिसिएशन भी चार्ज एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ या ना? यस सर। স্যার বলছিলাম যে বুকস অফ অ্যাকাউন্ট মানে উনি জাস্ট একটা এক্সাম্পল। বুকস অফ অ্যাকাউন্টস এর মধ্যে অনেক কিছু আছে। বুকস দেখো লেখা আছে বুকস অফ অ্যাকাউন্ট, প্লুরাল লেখা আছে, বুক অফ অ্যাকাউন্ট না, বুকস অফ অ্যাকাউন্ট। বুকস অফ অ্যাকাউন্টের মধ্যে জার্নাল, লেজার, ক্যাশ বুক, ঠিক আছে, এগুলো সব আছে, ঠিক আছে। এবার জার্নাল, লেজার তোমাদের নেই, তোমাদের ফাইনাল অ্যাকাউন্টস আছে, ঠিক আছে, সিলেবাসে। মানে জার্নাল, লেজার, ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट, ट्रायल, जर्नल, लेजर, कैश बुक, इसका बाद फाइनल अकाउंट्स। तो তোমাদের ডাইরেক্ট ফাইনাল অ্যাকাউন্টস আছে, ঠিক আছে, মাঝে তিনটে আগে স্টেপটা নেই। তো বুকস অফ অ্যাকাউন্টস এর মধ্যে এগুলো আছে, ঠিক আছে। ওকে স্যার। বুকস অফ অ্যাকাউন্টস এ এন্ট্রি করতে হয়। তোমাদের তারপরের স্টেপ আছে রেশিও অ্যানালিসিস, মানে হাইয়েস্ট স্টেপ। মানে তোমাদের জানো তো এবিসিডি শেখাচ্ছে, তোমাদের বলতে নেই, তোমাদের এবিসিডি দিয়ে স্টার্ট করিয়েছে শেখানো, বুঝতে পেরেছো? আর নিয়ে কোথায় গেছে জানো, নিয়ে তোমাদের অ্যাকাউন্টস এর পোস্টমর্টম করাও শিখিয়েছে, সিলেবাসে আছে, উইদিন 6 মান্থস। অ্যাকাউন্টিং এর এবিসিডি শেখানো থেকে শুরু করে অ্যাকাউন্টিং এর পোস্টমর্টম, কি করে অ্যাকাউন্টিং এর ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালিসিস করা হয়, ওটাও শেখাবে, সিলেবাসে আছে। ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টও আছে, কস্টিং এর কিছু পার্টও আছে, সবই দিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে, কিছু বাদ রাখেনি। যা যা ইচ্ছা হয়েছে সব ঢেলে দিয়েছে এর মধ্যে। টাইম দিয়েছে কিন্তু স্পেসিফিক একটা ফিক্সড টাইম দিয়ে দিয়েছে। সরি, কিছু মনে করো না, তোমরা Sir. জানো না তো কে কি সিলেবাস দিয়ে রেখেছে ওরা। Sir. MAKAUT। হ্যাঁ So within Huh. 6 months will we become a CA, chartered Huh? accountant? Within তোমরা 6 চার- months we will become a junior CA. হ্যাঁ, দে হোপ সো, ওরা ভাবে ঠিক আছে তোমাকে বানাবে, তোমাদেরকে বানাবে ভাবে ওরকম। কিন্তু দেখো বেসিক যে এই জিনিসের যে কনসেপ্ট আছে না, যে कॉन्सेप्ट एक तो कॉमर्स बैकग्राउंड का लड़का को 3 साल लगता है सीखने के लिए, 2 इयर्स मिनिमम। 11-12 दोनों साल लग जाता है ये नॉलेज लेने के लिए। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट छोड़ दीजिए, 11-12 पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, अकाउंटिंग पार्ट 2 साल लगता है सीखने के लिए, 2 इयर्स। और ये आप लोगों को 6 मंथ्स में नहीं दिया गया, ओरिजिनली ये 4 महीना लग दे दिया गया, तो 4 महीने में और कम हो जाता है। चलिए, फालतू टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है, जो सिलेबस में वो तो पढ़ना है। Okay, next we move to the next point. Can we move to the next point? Erosion of capital. Hello, yes or no? यस सर। Yes, sir. Yes sir. तो क्या होता है ना, बीच बीच में हम लोगों को भी, स्टूडेंट लोगों को समझाने में प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि हम पास्ट वाला नहीं बोलेंगे तो स्टूडेंट को कैसे समझाएंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन कर देगा, यू विल रेज क्वेश्चन,
हमको तो पास्ट वाला चीज बोलना पड़ता है। अगर पास्ट वाला रेफरेंस नहीं दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर पास्ट वाला रेफरेंस देने जाऊंगा ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम लोगों को कभी-कभार बोलना पड़ता है, ऐसा ही समझ लीजिए, ऐसा ही है। मैं अगर लॉजिक समझाने जाऊंगा ना तो मेरे को और 3 पार्ट, कुछ टॉपिक्स में 8 10 तो 12 तो क्लास ज्यादा देना पड़ता है। इट इज नॉट फिजिबल फॉर मी, ठीक है ना। तो क्या होता है, किसी किसी जगह में मैं बोल दूंगा ऐसा ही होता है, समझ लीजिएगा। प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। ओके, हमको भी खराब लगता है कि ये बोलने के लिए, बट आई हैव नथिंग टू डू, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास भी टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, बुझा गया। ठीक है, इरोशन ऑफ कैपिटल। इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑन वेस्टिंग एसेट, प्रॉफिट will be overstated. Overstated here means profit inflated, profit बढ़िए दिखाना होगा, profit ज्यादा दिखाना हो जाएगा। अगर depreciation नहीं चार्ज करते तो profit will be overstated and dividend paid out of that profit results in erosion of capital. Erosion of capital is a very important term in accounting. They use this term erosion of capital. Erosion of capital means, what do you mean by erosion? Anybody in English, what do you mean by erosion? Erosion का मतलब हो क्या जाओ होता है? सर, खोए जाओ माने कैपिटल, कैपिटल माने जो जिस रुपया से आप बिजनेस स्टार्ट किया था वही खो जाएगा, मतलब वो घट जाएगा। इरोशन ऑफ कैपिटल मींस कैपिटल घट जाएगा। कैपिटल अगर घट गया तो बिजनेस बहुत खराब सिचुएशंस में आ गया। डिविडेंड मींस a part of profit which is distributed, a part of profit of a company which is distributed among its shareholders. Dividend means a part of profit. Dividend means a part of profit which is distributed among its shareholders. ठीक है, इसको when dividend is paid out of capital it is known as erosion of capital. ओके, अगर ऐसा ही याद रखिएगा कि अगर पार्ट ऑफ, अगर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे तो हम लोग प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा और डिविडेंड, ज्यादा डिविडेंड पे कर देंगे। दैट मींस डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ कैपिटल। इज इट क्लियर? चलिए मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूं। ইরোশন অফ ক্যাপিটালটা একবার বলে দিন না। इरोशन ऑफ कैपिटल मींस decrease, gradual erosion of capital means gradual, মানে ক্ষয়ে যাওয়া, ক্যাপিটাল ক্ষয়ে যাওয়া মানে কমে যাওয়া। gradual decrease in the value of an asset. When the value of capital, when the value of capital gradually decreases, it is known as erosion of capital. When the amount of capital gradually decreases but it is not apparent, মানে आपको दिखाई नहीं मिलेगा, दिखाई नहीं देगा कि कैपिटल डिक्रीज করে যাচ্ছে, কিন্তু truly the capital has been decreased. If depreciation is not provided, then profit will be inflated. As a result, dividend outflow will be high. If depreciation is not provided in the books or incorrectly provided in the books, if depreciation is not provided in the books or incorrectly provided but undervalued, कम depreciation provide किया, तो profit will be inflated. As a result, dividend, when the profit is distributed among its shareholders, it will cause an erosion in the capital. এইটুকুই জেনে রাখো ভাই, আর বেশি বলতে গেলে আমার পক্ষে অসুবিধা, অনেক কিছু বোঝাতে হবে আমাকে। ওকে স্যার, এতটা বুঝি। এতটা বোঝো, নইলে আমার পক্ষে খুব অসুবিধা হয়ে যাবে। আমি 2 স্যার, মিনিট টাইম, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার, বলো। বলছি এটার কোনো ছোটখাটো এক্সাম্পল হবে না? এইটা দিতে গেলে আমাকে পুরো অ্যাকাউন্টিং এ তোমায় কনসেপ্ট দিতে হবে। ও ধরো সাপোজ, আচ্ছা, আমি তোমাকে একটা एग्जांपल দিচ্ছি, बोले मुझे एक मुख समझ रहा है। मेरे को प्रॉफिट, अगर এটা কিরকম ভাবে তোমাদের দিই, ধরো সাপোজ আমি বলছি, समझा रहा हूं, मेरा प्रॉफिट 10,000 रुपया हुआ। कितना हुआ? मेरा प्रॉफिट 1 लाख रुपया हुआ। कितना हुआ? प्लीज से विद मी, कितना हुआ प्रॉफिट? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ, ठीक है, क्लियर? हाँ या हाँ ना? सर। अगर डेप्रिसिएशन में 10,000 रुपया होगा तो कितना मेरा प्रॉफिट होगा आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन? 90,000। Am I clear or not? यस sir. सर। यस सर, यस सर। Yes. अब ये प्रॉफिट कौन लेगा? बिजनेस का मालिक लेगा, है कि नहीं? बिजनेस का प्रॉफिट कौन लेता है? बिजनेस का मालिक लेता है, नहीं है या नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो अगर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते तो बिजनेस का मालिक कितना प्रॉफिट लेगा? 90,000। 1 लाख माइनस 10,000, 90,000। अगर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया तो बिजनेस का प्रॉफिट कितना, बिजनेस का मालिक कितना प्रॉफिट लेगा? कितना प्रॉफिट लेगा? 1 लाख। 1 लाख। वेरी गुड। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज होता तो 90,000, अगर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते तो कितना लेता? 1 लाख लेगा प्रॉफिट। 1 लाख। ओरिजिनली तो डेप्रिसिएशन हुआ ना, मेरा मशीनरी यूज हुआ, मैं डेप्रिसिएशन को चार्ज दिखाया नहीं बुक्स में,
ये दिखाया नहीं, तो गलती हुआ कि नहीं? गलती से मैं डिप्रिसिएशन को दिखाया नहीं, मुझे एक्सेस 10,000 बिजनेस को मालिक को जो पैसा दे दिया ना, वो कैपिटल से आउटफ्लो हो गया। अगर मैं बैलेंस शीट करूंगा तो वो मेरा कैपिटल से निकल जाता है पैसा। समझ में आया? नहीं आएगा। इतना ही समझ लो कि अगर डिप्रिसिएशन चार्ज करते तो बिजनेस का मालिक 90,000 लेता, अगर डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज करता हूं तो बिजनेस का मालिक 1 लाख लेगा। मगर इन ट्रू सेंस क्या वो जो प्रॉफिट है ना 1 लाख, वो इन्फ्लेटेड प्रॉफिट है, उसमें डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया गया, और इसलिए बिजनेस का मालिक ज्यादा पैसा ले रहा है, मगर एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, वो कैपिटल से पैसा घट जा रहा है। समझ में आया? কিছু তো বোঝা গেছে, है कि ना? Yes, sir. Yes, হ্যাঁ sir. স্যার। यस सर। এইটুকুই বোঝো প্লিজ, আমাকে ये कर दो। एक बार डिप्रिसिएशन ऑन वेस्टिंग एसेट को प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिएगा। मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, प्लीज गो थ्रू डिप्रिसिएशन ऑन वेस्टिंग एसेट। 2 मिनट टाइम दे रहा हूं। হয়ে গেছে পড়া? सब लोग पढ़ लिए? हेलो, हाँ या ना? यस सर। एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेरीज? किसी का क्वेरीज है कुछ? नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में जाऊंगा। क्वेरीज है कि नहीं बोलिएगा प्लीज। No, sir. No नो queries. স্যার। ओके, थैंक यू। Now we move to a sum on effect of depreciation on net cash flow. Now we will move to a sum on effect of depreciation on net cash flow. Okay. A company is interested to invest in a project which requires 21 lakh. एक प्रोजेक्ट में कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहा है, उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 21 लाख रुपया। एस्टिमेट लाइफ इज 12 years, मतलब वो प्रोजेक्ट चलेगा कितना दिन? 12 साल चलेगा। एंड एक्सपेक्टेड टू अर्न एनुअल प्रॉफिट ऑफ 3,50,000। हर साल कितना प्रॉफिट कमाएंगे? 3.5 लाख रुपया। बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कटने का पहले हम लोग कितना, एक मिनट,
सॉरी, हर साल डिप्रिसिएशन काटने का पहले मेरे को कितना साल प्रॉफिट होगा? 3.5 लाख रुपया। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू ना? हेलो यस सर। हेलो, 3.5 लाख मेरे को प्रॉफिट होगा। टैक्स रेट इज 40%। टैक्स रेट कितना है? मेरे को 40%। टैक्स रेट यार मीन्स हमको जो प्रॉफिट कमाएंगे उसका 40% गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स मीन्स डायरेक्ट टैक्स, ये टैक्स मीन्स इनकम टैक्स, नॉट जीएसटी। ये टैक्स मीन्स इनकम टैक्स मेरे को 40% देना पड़ेगा। जो कमाऊंगा उसका 40% गवर्नमेंट टैक्स, इनकम टैक्स बोलकर काट लेगा मेरे से। नेक्स्ट, assume straight line method of depreciation, calculate the net cash flow. स्ट्रेट लाइन मेथड में हमको नेट कैश फ्लो को कैलकुलेट करने बोला है ये लोग। ओके, इज इट क्लियर? हेलो, हाँ फिर सर। एक बार क्या शाम को पढ़ने की जरूरत है? बोलिएगा फिर एक बार शाम को पढ़ूंगा, समझा दूंगा शाम को। फिर एक बार मैं समझा दे रहा हूं सब लोगों के लिए। एक कंपनी है, एक कंपनी इंटरेस्टेड है, अभी लगाया नहीं, इंटरेस्टेड है, लगाया नहीं पैसा, टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के पहले सोच रहा है। इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट, द टर्म यूज्ड इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट व्हिच रिक्वायर्स ₹21 लाख। 21 लाख रुपया खर्चा होगा, हुआ नहीं। 21 लाख रुपया एक प्रोजेक्ट में लगाएगा तो खर्चा होगा। उस प्रोजेक्ट कितना दिन चलेगा? 12 साल चलेगा। एंड एक्सपेक्टेड टू अर्न एनुअल प्रॉफिट, हर साल कितना कमाएंगे? 3.5 लाख रुपया कर हर साल कमाएंगे उस प्रोजेक्ट लगा देंगे तो। बिफोर, द टर्म यूज हियर इज बिफोर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स कटने का पहले कितना कमाएंगे? 3.5 लाख। डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए द टर्म यूज इज बिफोर, बहुत इंपॉर्टेंट है। द टर्म यूज इज बिफोर, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्रिसिएशन एंड टैक्स कटने का पहले मेरा 3.5 लाख रुपया प्रॉफिट होगा। तो डिप्रिसिएशन एंड टैक्स कटने के बाद कितना प्रॉफिट बढ़ेगा ना घटेगा? हेलो, डिप्रिसिएशन एंड टैक्स कटने का बाद प्रॉफिट मेरे 3.5 लाख से बढ़ेगा ना घटेगा? यस प्लीज घटेगा सर, काटेगा। सर हटेगा। घटेगा। हाँ, थैंक यू, राइट आंसर। फुल स्टॉप। टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट, गवर्नमेंट कितना प्रॉफिट के ऊपर टैक्स ले लेगा? 40% टैक्स कट लेगा। फुल स्टॉप। Assume straight line method of depreciation, comma, calculate the net cash flow. Net cash flow कितना हो रहा? कैलकुलेट करने बोला है इन लोग। तो सॉल्यूशन भी इधर है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग और टाइम भी बचेगा। स्टेटमेंट शोइंग नेट कैश फ्लो, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स कितना है? प्रॉफिट डिप्रिसिएशन एंड टैक्स कटने का पहले मेरा प्रॉफिट कितना है? 3.5 लाख रुपया। क्वेश्चन में ऑलरेडी इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। अब उसका ऊपर मैं डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो कैसे, कितना होगा? कैसे डिप्रिसिएशन 1,75,000 निकला? कोई बोल सकता है क्या? कैसे डिप्रिसिएशन 1,70,000 आया? एनीबॉडी? Sir, after adding that 40% of tax. नो, आई विल मूव। एनीबॉडी? और एनीबॉडी कैसे 1,75,000 निकला? कोई बोल सकता है क्या? एनीबॉडी 1,75,000 कैसे आया? कोई बोल सकता है? স্যার ওই 21 লাখটাকে 12 দিয়ে ডিভাইড করেছি। हाँ, 21 लाख के 12 दिए 21 लाख को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो मेरे को 1,75,000 आ जाएगा। 21 लाख को मेरे को 12 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को ₹21 लाख divided by 12 years is equal to, मेरे को कितना आएगा? ₹1,75,000 per annum depreciation. Is it clear to everybody? Hello? हाँ Yes, या sir. ना? क्लियर ना? सबको क्लियर हो गया? तो 1,75,000 कैसे आया हम लोग डिस्कस कर लिए।
तो 1,75,000। अब इसका ऊपर अगर 40% टैक्स का है तो 3.5 लाख मेरे को प्रॉफिट था हर साल। अब डेप्रिसिएशन और टैक्स कटने का पहले 3.5 लाख, अब डेप्रिसिएशन और टैक्स कटेंगे, डेप्रिसिएशन कटेंगे तो मेरा कितना जाएगा, कटने का बाद मेरे को कितना रहेगा, 1,75,000। समझ में आया 1,75,000 कैसे आया, ये 1,75,000 कैसे आया, समझ में आया एवरीबॉडी? यस सर, माइनस सर। माइनस करें। अब ये जो 1,75,000 है ये क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये क्या था, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। वी स्टार्टेड द प्रॉब्लम विद प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। मतलब क्या हुआ, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कटने का पहले कितना प्रॉफिट है, 3.5 लाख। उसका बाद में डेप्रिसिएशन लेस किया 1,75,000, तो मेरे को कितना रहा जो आया, वो जो 1,75,000 आया उसका नाम क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स से मैं डेप्रिसिएशन घटा दिया तो मेरे को क्या रहा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स कटने का पहले प्रॉफिट। इतना दूर तक सबको क्लियर, हाँ या ना, यस और नो? हाँ सर। यस सर। सबको क्लियर? आप 1,75,000 का ऊपर 40% में टैक्स काटा, 1,75,000 का ऊपर मैं 40% टैक्स काट लिया, आ रहा है 70,000। आप लोगों का सामने फोन है ना, फोन है? किसमें क्लास करते हैं, फोन ना लैपटॉप से, एनीबॉडी ना कंप्यूटर से? सर फोन से। फोन से, अच्छा। तब तो अगर कैलकुलेटर है तो हाथ का सामने कैलकुलेटर लेके बैठिएगा, इजी होगा कंप्यूटेशन के लिए। अगर आप लोगों का पास कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेटर लेके बैठिएगा नेक्स्ट क्लास में, और अगर लैपटॉप में करेंगे तो आपका हाथ के सामने फोन रहेगा, तो फोन से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। प्लीज नेक्स्ट क्लास, जब मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा, नेक्स्ट क्लासेस में आपका हाथ में कैलकुलेटर रखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना? अगर लैपटॉप नहीं तो कंप्यूटर से करेंगे तो आप फोन से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबका पास कैलकुलेटर है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर तो पक्का यस होगा। सर, यस सर, यस। तो हाथ का सामने कैलकुलेटर रखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है? तो लेस टैक्स 40,000 is calculated on 1,75,000. 40,000 is calculated on 1,75,000. Is it clear? 40% is calculated on 1,75,000. Is it clear? हाँ या ना? यस सर, यस सर। 1,75,000 के ऊपर 40% करेंगे तो मेरे को 70,000 आएगा। Is it clear? Okay. Then by subtracting tax from profit before tax, that is profit after tax, will be 1,05,000. Profit after tax will be 1,75,000 minus 70 is equal to 1,05,000. हो गया? हो गया, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। Then उसका साथ ये हम लोग डेप्रिसिएशन को क्यों ऐड किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर डेप्रिसिएशन को क्यों ऐड किया, एक क्लास में मैं डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, दैट इज बाय प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन देयर विल बी नो कैश आउटफ्लो। लास्ट क्लास में बोला था, याद है कि नहीं? मैं ये टॉपिक को बोला था कि प्लीज लिख कर रखिएगा, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में आता है, याद है कि नहीं? মনে আছে কি নেই প্লিজ বলো। हाँ सर। हाँ सर। মনে আছে, লিখে রেখেছো? মানে কি ডেপ্রিসিয়েশনে কি হয়, টাকা আমার কাছ থেকে বেরোয় না। डेप्रिसिएशन में क्या होता है, इन रियल टर्म्स डेप्रिसिएशन में क्या होता है, मेरे पास पैसा निकल नहीं जाता है, पैसा मेरे पास से जाता नहीं है, मेरे पास पैसा रह जाता है मगर मैं डेप्रिसिएशन को बुक करता हूं, इसलिए इसको डेप्रिसिएशन को नॉन कैश आइटम बोला जाता है। तो क्या किया, डेप्रिसिएशन को मैं एड बैक कर दिया, 1,75,000 एड बैक कर दिया, मेरे को नेट कैश इनफ्लो कितना हो गया, 2,80,000। अगर डेप्रिसिएशन ये नहीं होता, डेप्रिसिएशन के क्या चक्कर में मेरे को क्या हो गया, फायदा हो गया, टैक्स का फायदा हुआ, इसलिए डेप्रिसिएशन रहने से मेरे को टैक्स आउटफ्लो कम हो जाता है। अगर ये डेप्रिसिएशन नहीं रहता मेरा प्रॉफिट कितना होता, प्लीज? अगर ये डेप्रिसिएशन नहीं रहता तो प्रॉफिट कितना होता? 3.5 লাখ। আমি বলে দিচ্ছি, চলো জ্যাম বোর্ডে করে দিচ্ছি।
प्रॉफिट कितना है मेरा? प्लीज बोलिएगा, प्रॉफिट कितना है? 3.5 लाख। हाँ, 3.5 लाख। 3,50,000। ये कॉलम में डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, डेप नॉट प्रोवाइडेड। समझ में आया? डेप प्रोवाइडेड और डेप नॉट प्रोवाइडेड, तो दोनों में ही प्रॉफिट मेरा 3.5 लाख रुपया आएगा। अगर इसमें मैं डेप प्रोवाइड करूंगा, लेस क्या होगा? डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1,75,000। कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन? सर 1,75,000। 1,75,000। अब इसमें क्या लिखा है? डेप नॉट प्रोवाइडेड, है कि नहीं? यस सर। अगर डेप नहीं प्रोवाइड करेंगे, डेप्रिसिएशन नहीं देंगे, तो इधर डैश आएगा। तो इधर प्रॉफिट कितना हो गया? 1,75,000। इधर प्रॉफिट कितना हो गया? 3.5 लाख। फिर क्या करेंगे? लेस टैक्स करेंगे। टैक्स 40% है मेरा रेट ऑफ टैक्स, तो इसका ऊपर 40% करेंगे तो कितना आ रहा था? 70,000 आ रहा था ना? यस सर। अब इसका ऊपर 35,000 का ऊपर 70% करेंगे तो 40% करेंगे तो कितना आएगा? 1,40,000। 1,40,000 आएगा इधर। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन नहीं प्रोवाइड करता तो टैक्स किसमें ज्यादा जा रहा था? टैक्स किसमें ज्यादा जा रहा है? हेलो So sir, when सेकंड मेथड में depreciation is अगर not provided. डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो मेरे को टैक्स ज्यादा जा रहा है Yes, कि sir. नहीं? गवर्नमेंट को मेरे Yes, को sir. ज्यादा रियल टर्म में टैक्स देना पड़ रहा है। अगर डेप्रिसिएशन है इसलिए मेरे को टैक्स कम दे रहा है। मेथड फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट में मेरे को टैक्स कम देना पड़ रहा है, इसमें मेरे को टैक्स ज्यादा पे करना पड़ रहा है। इसमें लेस टैक्स देना पड़ रहा है, लेस टैक्स, मोर टैक्स। तो डेप्रिसिएशन के कारण मैं बोल सकता हूं ना, डेप्रिसिएशन का कारण मेरे को टैक्स आउटफ्लो कम हो रहा है। मेरे का डेप्रिसिएशन का कारण टैक्स आउटफ्लो मेरे को कम हो रहा है, मैं बोल सकता हूं ना? Yes, sir. डेप्रिसिएशन का कारण मेरा टैक्स आउटफ्लो कम हो रहा है, ये मैं बोल सकता हूं ना? हाँ या ना? Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. तो इसलिए फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, व्हेन वी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, दे आर, इसलिए डेप्रिसिएशन को लिख कर रखिए, प्लीज नोट इट डाउन। In real terms, depreciation is not a cash outflow. In real terms, लिख रहे हैं ना आप लोग? कॉपी लेकर बैठते हैं ना? प्लीज कॉपी लेकर बैठते हैं, हाँ या ना? कॉपी लेकर नहीं बैठे तो 2 मिनट मेरे पास मांग लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूँ, कॉपी लेके आइएगा। सबर का खाता আছে तो Yes, sir. Yes, sir. लिख कर रखिएगा। In real terms, depreciation is not a cash outflow. It is a cash inflow. हुआ कि नहीं? कितना मेरे को कैश इनफ्लो हुआ? इधर 70,000 कैश इनफ्लो हुआ, मेरे को टैक्स कम देना पड़ा। Sir, can you समझ repeat the line again? দেখো আমি তো লেখা নেই, আমি চিন্তা করে বলছি। আমি আবার রিপিট করে দিচ্ছি। এর আগেরটার মতন এক্স্যাক্টলি নাও হতে পারে, এর আগেরটার মতো এক্স্যাক্টলি নাও হতে পারে, ये पहले जैसे का एग्जैक्टली नहीं होगा मगर मीनिंग सेम होगा। डेप्रिसिएशन इज नॉट ए कैश। प्लीज स्पीकर ऑफ कर दीजिएगा, जिसका स्पीकर ऑन हो गया, किसी का स्पीकर ऑन हो गया प्लीज म्यूट कर दीजिए। प्लीज किसी का स्पीकर ऑफ हो गया, म्यूट कर दीजिएगा। Depreciation in real terms, depreciation is not a cash outflow. It is a cash inflow. In real terms, depreciation is not a cash outflow. It is a cash inflow. समझ में आया? हाँ या ना? Yes, sir.
ये पार्टिकुलर्स लिखा, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना, पार्टिकुलर समझ में आ रहा है कि नहीं, हैंड राइटिंग मेरा थोड़ा इधर थोड़ा खराब आ जाए। ओके फाइन, समझ में आया ना पार्टिकुलर डेप्रिसिएशन, ओके सबको समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। ओके थैंक यू, मैं इधर था, चलिए इस स्लाइड में। तो इसलिए हम लोग क्या किया, ऐड किया, इधर एक बार लेस कर दिया डेप्रिसिएशन को, फिर वही डेप्रिसिएशन को मैं हम लोग ऐड बैक कर दिया। तो मेरा कैश इनफ्लो कितना हुआ, 2,80,000। मेरे को क्वेश्चन में मांगा था नेट कैश इनफ्लो, समझ में आया? एक बार मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, गौर से सम को देखिएगा, उसका बाद क्वेरीज रहेगा तो रेज कीजिएगा, मैं समझा दूंगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट सम में मूव करूंगा। मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, गौर से क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्यूशन को देखिए, किसी का भी कोई क्वेरीज है तो रेज कीजिएगा उसका बाद। हो गया, पढ़ना हो गया, सम को देख लिया आप लोग? यस सर। किसी का कोई क्वेरीज है? हेलो, क्वेरीज है? नहीं तो और 1 मिनट टाइम दे सकता हूँ, अगर कोई किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। স্যার এক্সামে স্যার সেম ভাবেই লিখতে হবে? हाँ এই টাইপে, এই ফরম্যাট ইজ ভেরি ক্লিয়ার, দিস ফরম্যাট में ही करना है, না করলে Okay, ফেসে যাবে, এই ফরম্যাটেই করতে হবে, বোঝা গেছে? আমি নেক্সট সামে মুভ করব, হ্যাঁ ইয়া না? এক হ্যাঁ, স্যার। মিনিট 1 মিনিট, ওকে ফাইন। হয়ে গেলে যে বললে প্লিজ বলবে আমাকে যে আমার হয়ে গেছে, হ্যাঁ? হয়েছে? স্যার বলছিলাম এখানে এটা 1,75,000 কি করে এলো কোনখানটায় বলো, অ্যাড কোন স্টেপটা? ডেপ্রিসিয়েশন? অ্যাড ডেপ্রিসিয়েশন, এই যে ওটা ডেপ্রিসিয়েশন, 1,05,000 এই যে এই ডেপ্রিসিয়েশনটা রিটার্ন যেটা করলো। লেস করেছিলাম সেটাই আমি অ্যাড ব্যাক করলাম। ওকে ওকে। जो डेप्रिसिएशन में लेस किया था वही वाला ऐड बैक किया, ওই ফিগারটাই আমি অ্যাড ব্যাক করলাম এখানে, এই ফিগারটাকেই আমি এখানে অ্যাড ব্যাক করলাম, বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার। মানে এই ফিগারটাকেই আমি এখানে অ্যাড ব্যাক করলাম, বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার, ইয়েস। হ্যাঁ, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट सम। सवाल क्लियर হয়েছে না? सबको क्लियर हो गया ये? हाँ सर। ओके थैंक यू। अब वो जो डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूटेशन हुआ था उसका वैल्यू दिया गया है।
Next, we move to another sum. A company is considering a new proposal to invest in a project which requires an initial investment of rupees 4 lakh. The sorry, a कंपनी का पास एक प्रपोजल है. क्या प्रपोजल है? उस प्रपोजल में मैं 40 लाख 4 लाख को इन्वेस्ट करना पड़ेगा. कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 4 लाख. अब कितना दिन लाइफ है उस प्रोजेक्ट का? 10 years. लाइफ कितना है? 10 साल चलेगा वो प्रोजेक्ट. एस्टिमेटेड रेवेन्यू डेटा पर ईयर आर गिवन बिलो. तो मतलब कितना पैसा अभी कमाएंगे वो आ रहा है. एस्टिमेटेड सेल्स कितना सेल करेंगे? 10,000 यूनिट्स. कितना हम लोग सेल करेंगे? 10,000 यूनिट्स. सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹10. एक यूनिट बेचूंगा तो मेरे को कितना कमाई होगा? 10 रुपया. तो टोटल सेल्स कितना आएगा? प्लीज टोटल सेल्स कितना आएगा? 10,000 यूनिट्स में सेल Sir, 1 करूंगा. lakh. 1 lakh. 1 लाख. वेरी गुड, वेरी गुड. मेरे को टोटल खर्चा, मेरे को इनकम होगा कितना? 1 So, लाख 1 रुपया. lakh. 1 1 लाख. lakh. वेरी गुड. अब डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, मतलब एक सामान बनाने के लिए मेरे को मटेरियल कितना खर्चा आएगा? 3 रुपया. तो टोटल कितना मटेरियल लगेगा? टोटल कितना मटेरियल कॉस्ट आएगा? Sir, 10,000 30,000. है. Sir, 30,000. वेरी गुड. सबको आ गया क्या? देखिए मुफ्त में ही हो जाएगा. टोटल मेरा मटेरियल कॉस्ट कितना लगेगा? सबको आया? 10,000 into 3. 10,000 into 3. 30,000. क्लियर? हेलो, सबको क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. 3 into 10,000. टोटल यूनिट बनाएंगे इतना. सेल करेंगे मतलब बनाएंगे ना. सेल लिखा है मतलब ये बनाएंगे ना. तो 30,000. लेबर पर यूनिट कितना? 2 रुपया. तो लेबर कॉस्ट कितना आएगा? लेबर 20,000. 20,000. तो मटेरियल कॉस्ट 30, लेबर कॉस्ट 20. मेरे को 50,000 लग गया. वेरिएबल ओवरहेड, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना आएगा? 1 रुपया. तो वेरिएबल ओवरहेड कितना आएगा? 10,000, sir. Rupees 10,000. 10,000. तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 30 प्लस 2, 30,000 प्लस 20,000, तो 50,000 प्लस 10,000, तो 60,000. अब फिक्स कॉस्ट जो मशीनरी जो भी है वो जो लग गया, फिक्स नेचर ऑफ कॉस्ट मेरे को 15,000 लग गया. तो मेरे को टोटल कॉस्ट कितना हो गया? Sir, 75,000. वेरी गुड. 75,000. तो प्रॉफिट कितना हुआ? Sir, 25,000. वेरी गुड. अब 25,000 का ऊपर 40% टैक्स लग जाएगा. 25,000 का 40% कितना होगा? होगा 10,000 रुपया. तो मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा? 3,000 सर. है? 15,000 सर. वेरी गुड. सबको आया कि नहीं? हाँ या না? किसी का Yes, মানে sir, এই yes, এতটা sir. অব্দি এসছে, মানে এই যে 10,000 রুপি? অব্দি, মানে ফার্স্টে তো 10,000 ইউনিট লাগছে, ওর হ্যাঁ। জন্য এবার আপনি 10 টাকা করে পার ইউনিট দিচ্ছেন, মানে এর জন্য 1 লাখ হচ্ছে. 1 লাখ সেল করছি. হ্যাঁ সেল হ্যাঁ 1 লাখ সেল করছেন. হ্যাঁ, এবার ডাইরেক্ট প্রাইস মেটেরিয়াল পার ইউনিট 3 মানে প্রতি ইউনিটের জন্য 30,000 লাগছে. लगते एक ना 1 यूनिट बनाने के लिए मेरे को 3 रुपए. अभी तो ये सेल प्राइस हो गया. হ্যাঁ मेरे को हाँ. सेल प्राइस और एक बार समझा दे रहा हूँ. ये हिंदी बोलेगा तो हिंदी बुझते पड़ो तो. yes, हेलो sir. ये ओके फाइन. तो मेरे जो सेल कर रहा हूँ उसको मेरे को टोटल सेल्स कितना आएगा? 1,10,000 इंटू ₹10 पर यूनिट. तो 1 लाख. तो ওইটাকে বানাতে গেলে उसको बनाने के लिए मटेरियल क्या? 3 रुपया का पर यूनिट का मटेरियल. मैं बना कितना रहा हूँ? 10,000 यूनिट. 10,000 यूनिट बना रहा हूँ इसलिए ना मैं सेल कर पा रहा हूँ. समझ में आया? বানিয়েছি তাইলে না আমি বিক্রি করতে পারছি. তাহলে 10,000 यूनिट सेल कर रहा हूँ. अब एक मटेरियल 3 रुपया का लग रहा है तो टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना लग जाएगा? 10,000 इंटू 3, 30,000. एक मटेरियल बनाने के लिए 2 रुपया का लेबर कॉस्ट, जो लेबर काम कर रहा है वो एक मटेरियल बनाने के लिए 2 रुपया लेता है. 20,000. 20,000. और वेरिएबल ओवरहेड मतलब इलेक्ट्रिसिटी ये सब जो हाँ, मशीन चल रहा है 10,000. 10,000. तो 30 प्लस 20 50 प्लस 1 प्लस 1 60,000. 60,000. अब फिक्स्ड कॉस्ट जो लगना ही है वो जो जिस घर में बना रहा हूँ उस घर का भाड़ा 15,000. 15,000. 75,000. 60 प्लस 70 75,000. 15,75. अब तो मेरे को प्रोडक्ट बनाने का खर्चा कितना आ गया? मेरे को प्रोडक्ट बनाने का खर्चा कितना आ गया? 75,000. बिक्री करे कत টাকা পাচ্ছি? कितना आ रहा है सेल 1 करने लाख. के बाद? তাহলে प्रॉफिट कत? प्रॉफिट कितना हुआ? 25,000.
वेरी गुड। अब प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है, इनकम करेंगे तभी ना टैक्स लगेगा। इनकम कितना किया? यस सर। इनकम कितना किया? 25,000। हाँ 25,000 income 25,000 profit, rather you say profit 25,000, sorry, income is 1 lakh, profit 25,000, profit कितना होलो? Profit कितना हुआ? 25,000, 1 lakh minus 75,000, 25,000 profit। अब profit का ऊपर 40% टैक्स, मतलब 25,000 का ऊपर 40% टैक्स, हाँ बने 10,000, 10,000 आ रहा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स कटने के बाद मेरे को प्रॉफिट कितना आ रहा है? 25,000 minus 10,000 is equal to 15,000। हाँ या না? এখানটা বুঝতে পারছি না, এই 25,000 এর পর মানে নিজে 40% এ করলেন, 40% এ করতে তো ওটা কত আসছে, 15 না 10 একটা বললো? 25,000 এর ক্যালকুলেটর আছে হাতের কাছে? হ্যাঁ 25,000 10,000 into আসছে। 10% করো। হ্যাঁ ব্যাস এক মিনিট, 25,000 into 10% করো। হ্যাঁ 10,000 ওটা 10,000, তো 25,000 আমার প্রফিট হয়েছে। প্রফিটের উপর আমাকে ট্যাক্স देना पड़ता হ্যাঁ है ना। ট্যাক্স प्रॉफिट 10,000 বাকি থাকছে 15,000। वही हो गया हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वही हो गया मेरा प्रॉफिट হ্যাঁ आफ्टर। ওটা আফটার ট্যাক্স। হ্যাঁ মানে কত প্রফিট আফটার ট্যাক্স? কত কত বেরোলো তোমার? 15,000। ভেরি গুড। চলো নেক্সটটাই যাচ্ছি। সবার বেরিয়েছে তো? এবার দেখো ওই জিনিসটা এখানে গিয়ে ওই चीज। ओ तो फिर इसको डेप्रिसिएशन नहीं लिया, चलो वो डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना पड़ेगा। एस्टिमेटेड सेल्स কত দিল এটা? এটা কি ওই অঙ্কটা? সেল প্রাইস এক মিনিট দাঁড়া, একটু স্লাইডটা মানে ভুল চলে এসেছে, স্লাইড গলত आ गया। एक मिनट, ये जो इधर जो सॉल्यूशन दिया गया ना, इस सॉल्यूशन में थोड़ा गलती है। हेलो, ये सॉल्यूशन में गलती है। এটা এই বইয়েরটা হ্যাঁ বইয়ের ইয়েতে ভুল আছে। ওর পরে তো ক্যাশ ইনফ্লেশন এটা বার করতে গেলে তো ওর পরে এই ডেপ্রিসিয়েশনটাকে অ্যাড করে দেবো কাজ। হ্যাঁ অ্যাড করে দেবে, কিন্তু ওইখানে যে ফিগারটা নিচে না কোশ্চেনের সঙ্গে এখানে ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট এত, এই যে এখানে 15 টাকা নিচে না সেল প্রাইস, ইদার যে সেল প্রাইস এস্টিমেটেড সেল প্রাইস ইজ 15, এখানে কোশ্চেনে কত আছে? 10 আছে না এখানে? বোঝা গেছে? এখানে ভুলটা কোথায় আছে বোঝা গেছে? হ্যালো, এই অঙ্কটা কি আমি করে দেবো? খালি এইখানে একটু চেঞ্জ করতে হবে, এইখানে একটু অঙ্কটাকে চেঞ্জ, ভুল আছে অঙ্কটা। এইখানে অঙ্কটাতে প্রিন্টিং এরর আছে। এইখানে সেল প্রাইসটা যদি 15 করে দাও তাহলেই মিলে যাবে। বোঝা গেছে? হ্যালো, Yes, sir. ওকে, এখানে 15 করলে এটা মিলে যাবে। বোঝা গেছে? এখানে একটু প্রিন্টিং এরর আছে। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। বুঝতে পেরেছো তুমি? স্যার টোটালটা স্যার এখানে অ্যাকচুয়াল হচ্ছে স্যার টোটাল ক্যাশ ফ্লোর উপরে ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশনটা। না, ওই 4 লাখের উপর ডেপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেশন, যে 4 লাখ, 4 লাখ টাকা আগে আছে, 4 হ্যাঁ, লাখ স্যার, টাকা উপর হ্যাঁ, ডেপ্রিসিয়েশন। বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। ডেপ্রিসিয়েশন প্রজেক্টের কস্টের উপর হচ্ছে, এই কস্টের উপর হচ্ছে। डेप्रिसिएशन प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर होता है। ओके सर। ये 4 लाख का, ये 4 लाख का ऊपर हो रहा है डेप्रिसिएशन, ये 4 लाख का ऊपर हो रहा है।
তাহলে প্রত্যেক বছর কত 40,000 ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে, তাই তো? Yes, sir. Yes. ইয়েস স্যার। আর এখানে এটাকে না সেল প্রাইস পার ইউনিট होगा ₹15, ओके? सेल प्राइस पर यूनिट होगा ₹15. There is an error. That is a printing error in this one. Okay. কোন অসুবিধা, कोई प्रॉब्लम है नहीं? प्रॉब्लम আছে কি? নো স্যার। Okay. The next 1,75,000. Then we charge depreciation of 40,000. 40,000. Is it clear? 40,000. How we will derive 40,000? Is it clear? Is it clear Yes, to sir. everybody? Okay. 40,000. Then profit before tax is 35,000. Then profit before tax is 35,000. Profit before tax is 35,000. Less tax at the rate of 40%. On 35,000, please compute the amount of tax. Please compute the amount of tax. Everybody, please compute the amount of tax. Everybody, please compute the amount of 14,000 आ रहा है ना amount of tax? 14,000 sir. आ रहा है? हो रहा है. Yes, sir. 14,000. Then thereafter we add the profit before tax. कितना टैक्स काटेंगे? तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा? 21,000. Thereafter we add depreciation. इधर depreciation का दूसरा नाम है नॉन कैश एक्सपेंस बोलकर लिखा है. depreciation का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है depreciation का? नॉन कैश एक्सपेंस। Non-cash expense. कैश एक्सपेंस. 40,000 ये जो depreciation है, यही depreciation इधर एड बैक कर दिया, मेरा नेट कैश इनफ्लो हो गया 61,000. प्लीज एक बार देखिएगा इसमें, एक बार একটু দেখো তো। অঙ্কটা 2 মিনিট টাইম দিলাম, এখানে 15 ধরবে কোশ্চেনে, যেটা ইয়ে আছে সরি 10,000 আছে, ₹10 দেওয়া আছে, এখানে 15 ধরতে হবে, ঠিক আছে? 2 মিনিট টাইম দিলাম, অঙ্কটা একবার গো থ্রু করুন। স্যার এই লেস এস্টিমেটেড ফিক্সড কস্ট যেটা আছে, ফিক্সড ক্যাশ কস্ট, ওখানে 15,000 কি করে আসছে? কোশ্চেনটা একবার দেখ। Can we move to the next problem? স্যার এই লেস এস্টিমেটেড ফিক্সড ক্যাশ কস্ট যেটা আছে 15,000, ওটা কি করে আসছে? কোনটা? হুম, ফিক্সড হুম, এই কস্ট, এটা 50, এটা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা কোশ্চেনে দেওয়া আছে। ওকে। এই দেখো, এটা হুম হুম। ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में है, यही गलत है, इधर ये 15 होगा, समझ में आया? इज इट क्लियर?
सबको क्लियर है? Yes, sir. आगे अंदर। ओके, थैंक यू। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट सम? Next sum. A company is considering for a new automatic machine to replace the manual labor system. तो क्या कंपनी के पास एक तो मैनुअल है जिसमें ह्यूमन बीइंग से काम होता है, जो मशीन से लेबर सिस्टम से अभी क्या करता है, वो मैनुअली कोई काम कर रहा है। तो अभी वो क्या कर रहा है, एक तो ऑटोमेटेड मशीन खरीदने चाहता है जो ऑटोमेटिकली कुछ काम करेगा। A company is considering for a new automatic machine to replace the manual labor system. जो मैनुअली कोई काम होता था अभी उसको छोड़कर एक ऑटोमेटेड मशीन खरीद लिया। फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल। मैनुअल लेबर सिस्टम समझ में आया क्या? मैनुअल लेबर सिस्टम क्या होता है? अगर किसी का नहीं समझ में आता तो रेज क्वेश्चन। हेलो, मैनुअल लेबर सिस्टम पता है क्या है? Yes, sir. जैसे मैं एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। মুড়ি দেখেছো? মুড়ি মুড়ি ইংলিশে বলে পাফড রাইস। মুড়ি সবাই চেনো? মুড়ি सबको হ্যাঁ, पता है স্যার। ना মুড়ি? হ্যাঁ, স্যার। মুড়ি এরকম ভাজতো, ভাজে কড়াইতে না, ওই বালি দিয়ে ভাজে মুড়ি। এখন কি মুড়ি এরকম ভেজে पैक मुड़ी आसे? ऐसा पैक मुड़ी भाज कर आता है? नहीं, मशीन में भजता है। वो जो मुड़ी आता है ना, वो मशीन में फ्राइड होता है। समझ में आया? तो पहले क्या हाथ से मुड़ी भाजता था, आज मतलब कढ़ाई में देकर और झाड़ू से, नारकेल झाड़ू से बनाता था पहले, हम लोग देखे हैं। अभी आप लोग देखे कि नहीं पता नहीं। तो अभी मुड़ी बनाने का मशीन निकल गया, तो उस मशीन से, ऑटोमेटिक मशीन से वो लोग अब मुड़ी बना रहा है, एज्यूम कीजिएगा। तो तो उसका पास दो मशीन है। नंबर वन मशीन का कॉस्ट कितना है मेरे पास? 3 लाख रुपया। नंबर वन मशीन का कॉस्ट कितना है? नंबर वन मशीन का कॉस्ट कितना है? 3 लाख। 3 lakh. 3 लाख। नंबर टू मशीन, ये एज्यूम कीजिएगा नंबर टू मशीन, ये कितना है? नंबर टू मशीन, ठीक है? 3,50,000। उसका दाम है 3.5 लाख रुपया। तो दोनों का एक एक यूजफुल लाइफ दिया गया। एस्टिमेटेड लाइफ कितना है? फर्स्ट मशीन का 6 ईयर, सेकेंड मशीन का कितना है यूजफुल लाइफ? 7 ईयर्स। फर्स्ट मशीन का यूजफुल लाइफ कितना? 6 ईयर्स। सेकेंड मशीन का यूजफुल लाइफ कितना है? 7 ईयर्स। कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, जो मटेरियल इनडायरेक्टली लगता है उसका दाम कितना है? रुपीज। इधर कॉस्ट बोला गया है, इधर कॉस्ट बोला गया है, ये तो सिर्फ रुपीज में होगा। रुपीज कितना है? 20,000। ये रुपीज 25,000। ये कॉस्ट कितना है? 20,000 और 25,000। अब इधर क्या दिया गया? एस्टिमेटेड सेविंग इन डायरेक्ट लेबर। एस्टिमेटेड सेविंग इन डायरेक्ट लेबर मीन मेरे को कितना लेबर कॉस्ट में सेविंग हो रहा है। एस्टिमेटेड सेविंग इन डायरेक्ट लेबर मीन मेरे को लेबर कॉस्ट में कितना सेव हो रहा है। लेबर कॉस्ट में मेरे को कितना सेव हो रहा है? नंबर ऑफ लेबर नॉट रिक्वायर्ड, इधर द टर्म यूज इज नॉट रिक्वायर्ड। इधर मेरा 200 लेबर नहीं लगेगा, इधर मेरे को 220 लेबर नहीं लगेगा। मेरे को जितना लगता है इधर 200 कम लगेगा, ठीक है? इधर 200 कम लगेगा, इधर 220 कम लगेगा। समझ में आया? नॉट रिक्वायर्ड, द टर्म यूज इज नॉट रिक्वायर्ड। प्लीज नोट इट डाउन, द टर्म यूज्ड हियर इज नॉट रिक्वायर्ड। कितना लेबर इधर नहीं लगेगा? 200 नहीं लगेगा। सपोज वी एज्यूम मेरे को टोटल 1000 लेबर लगेगा, लगता है मैनुअल सिस्टम में। इधर कितना लगेगा? इस मेथड में, इस मशीन में कितना लेबर लगेगा? एनीबॉडी? टोटल अगर 1000 लेबर लग 800. वेरी गुड। इस मशीन में कितना लेबर लगेगा? The 780. 780। 780। वेरी गुड। तो लेबर नॉट रिक्वायर्ड, तो इतना मेरा लेबर कॉस्ट का, इतना लेबर अगर नहीं लगेगा तो इसका पैसा मेरे को बच जाएगा। हाँ या ना? यस और नो? यस सर, यस सर। Yes, वी कैन sir. सेव 200 का लेबर कॉस्ट बच जाएगा, इधर 220 लेबर कॉस्ट का बच जाएगा। तो मशीन 1 और 2 में मेरे को नेट में कितना लेबर का खर्चा बचेगा? लेबर कॉस्ट कितना लेबर का बचेगा? 20 लेबर का बचेगा।
अगर मशीन 1 लेकर नहीं मैं मशीन 2 में जाऊंगा तो मेरे को कितना लेबर का कॉस्ट बच जाएगा? 20 लेबर का कॉस्ट बचेगा ना। ये क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? अगर मैं मशीन 1 नहीं खरीद कर मशीन 2 खरीदता तो मेरे को कितना लेबर कॉस्ट बचता? 220 জনের, হ্যাঁ 20 জনের। এখানে 200 জন বাঁচছিল, কম লাগছিল, এখানে 220 জন কম লাগছে, তাহলে এক্সট্রা সেভিংস এখানে কত? 20টা लेबर। 20 हाँ জন। या ना? यही मैं पूछ रहा था। 20 लेबर। सबको समझ में आया कि नहीं? इफ एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेरीज प्लीज रेज क्वेश्चन। किसी का अगर कोई क्वेरीज है तो क्वेश्चन रेज कर सकता है। 20 लेबर कॉस्ट मेरा मशीन 2 में बच रहा है, हाँ या ना? प्लीज यस और नो तो बोलिएगा। Yes, sir. Yes ना? Okay. Next we move to next point. Labor rate per employee. एक लेबर का कितना पैसा लेता है? इधर भी 1000, इधर भी 1000, 1000 रुपीज कर पर लेबर लेता है, पर एम्प्लॉय। पर एम्प्लॉय कितना लेता है? 1000। तो इधर कितना खर्चा बचेगा? मशीन 2 में आ जाएंगे तो मेरे को मशीन 1 से कितना खर्चा बच जाएगा? 20,000। वेरी गुड, 20,000 लेबर कॉस्ट बचेगा मेरा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी हाउ वी कंप्यूट 20,000? ये 20 इंटू 1000, ये मेरे को इधर नहीं लगेगा। 20 सेविंग्स है, 20 लेबर का मेरे को सेविंग्स है। 20 इंटू 1000, 20,000 मेरा लेबर कॉस्ट सेविंग्स है। इज इट क्लियर? हाँ या ना? है सर। ओके। नेक्स्ट, एस्टिमेटेड सेविंग्स इन स्क्रैप। अगर मशीन 1 को मैं बेचूंगा आफ्टर 6 इयर्स, अगर मशीन 1 को मैं आफ्टर 6 इयर्स बेचूंगा, बाद बेचूंगा, मेरे को कितना पैसा मिलेगा? मशीन 1 को 6 साल बाद बेचूंगा तो मेरे को 22,000 रुपया मिलेगा जब मशीन 1 खराब हो जाएगा। 6 साल का बाद और मशीन नहीं चलेगा। इस यूजफुल लाइफ कितना है? 6 साल। 6 साल बाद ये 3 लाख का मशीन बेचूंगा मैं कितना को? कितना में? 20,000, 22,000 में। समझ में आया? हाँ या ना प्लीज? सर। ओके। अगर मशीन 2 को जो 3.5 लाख रुपया दाम है, 7 साल उसका यूजफुल लाइफ है, बेचूंगा, मेरे को कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 30,000। वेरी गुड। ये मशीन अगर यूज करूंगा मेरे को कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग कितना आएगा? 40,000। और ये मशीन में यूज करूंगा तो मेरे को कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग कितना आएगा? 48,000। ये 7 इयर्स में 7 साल मिलाकर मेरे को 48,000 आएगा। ये क्वेश्चन साइलेंट है, पर ईयर कुछ नहीं बोला, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 7 साल में मेरे को कितना खर्चा आएगा? 48,000। ये मशीन में यूज करूंगा, 6 साल में मेरे को कितना खर्चा आएगा? 40,000। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं बोलिए? Yes, sir. सबको क्लियर है? 2-3 आवाज आना चाहिए मेरा कान में प्लीज। यस सर। 2-3 बोलिए। और किसी का? सबको समझ में आ गया? आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब सॉल्यूशन क्या बोला? एस्टिमेटेड सेविंग्स इन कॉस्ट। कितना मेरा कॉस्ट का सेविंग्स आ रहा है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना आ रहा है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट सॉरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेरे को कैसे आ रहा है? 2 लाख रुपया आ रहा है कि नहीं? হ্যাঁ 2000 জনের ওই কুয়ে করে 2000 জনের 200 জনের 200 জনের 200 জন 200 इंटू 1000, জনের হ্যাঁ 1000 টাকা। सबको समझ में आ रहा है? 200 इंटू 1000, 200 Yes, sir. 200 इंटू 1000। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. है सर। 200 इंटू 1000। अब ये 220 इंटू 1000। समझ में आ रहा? एक एक करके जा रहा हूं। चलिए मशीन 2 में को बाद में आऊंगा, मशीन 1 का बोल रहा हूं। 2 लाख 200 इंटू 1000
तो 2 लाख रुपया लेबर कॉस्ट। स्क्रैप मेरे को कितना मिलेगा? এই ছিল এটা 22,000 22,000 টাকা আমি পাবো মেশিনটা বিক্রি করে দিলে। তাহলে আমার কাছে টোটাল পয়সা কত আসবে? 2,22,000 2,22,000 মানে আমার सेविंग। देखो ये किधर ऊपर में क्या बोला? एस्टिमेटेड सेविंग्स इन कॉस्ट। मेरा कॉस्ट सेविंग कितना होगा मशीन 1 में? कॉस्ट सेविंग्स कितना होगा? 2,22,000। हाँ या ना? Yes, sir. ओके। देन मशीन 1 में एडिशनल क्या क्या कॉस्ट लगेगा? इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर बोल दिया 20,000। याद है कि नहीं? क्वेश्चन में जाऊं क्या? Yes, sir. क्वेश्चन में ओके फाइन फाइन सॉरी एक सेकंड। ये जो लेबर कॉस्ट कितना, ये इनडायरेक्ट मटेरियल कितना 20,000 20,000 और इधर 25,000 याद रहेगा ना? यही वाला समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके यही वाला 20,000 आ गया 2025 sir. और इधर इधर 25 आ गया। याद रखिए। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 40,000, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 40 और डेप्रिसिएशन 50। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस देखिएगा 40,000 आ रहा है कि नहीं? 40 या 48 हाँ 40 48। अब डेप्रिसिएशन कितना आएगा मशीन 1 का? बोलिए डेप्रिसिएशन कितना अरे आएगा? तो 3,00,000/6 हाँ कितना आएगा? 50,000 आएगा ना? सब कैलकुलेट कीजिए। হ্যাঁ कैलकुलेट হ্যাঁ দুটোতেই 50,000 আসছে 50,000 आ रहा है ना डेप्रिसिएशन? सब कैलकुलेट कर लिए? हो गया सबका कैलकुलेशन? डेप्रिसिएशन अमाउंट हो गया? हाँ या ना तो बोलिएगा। कीजिए डेप्रिसिएशन। হ্যাঁ স্যার। चलो इससे सवाल ओके। तो डेप्रिसिएशन कितना आया? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 40, डेप्रिसिएशन 40 48 আর এখানে 50 50 দুটোতেই হয়েছে। আমি মেশিন 1টা নিয়ে বলছি যেহেতু আবার স্লাইডটা দেখার দরকার। তাহলে এটাও ফিগারটাও ভেরিফাই হয়ে গেল। हो गया वेरीफाई। देन टोटल एक्सपेंसेस कितना आया मेरा? 1,10,000। खर्चा कितना आ गया? ये कॉस्ट है, तीनों तीनों ही कॉस्ट है। डायरेक्ट इंडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन, तीनों मिलाकर मेरे को कितना आ गया? 1,10,000। 10,000 अब मेरे को एस्टिमेटेड सेविंग्स इन कॉस्ट, कॉस्ट सेविंग कितना हो रहा था? 2,22,000। हाँ या ना? कॉस्ट सेविंग Yes, 2,22,000 हो sir. रहा था। मेरा खर्चा कितना हो रहा है? 1,10,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया? ए माइनस बी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स करने का पहले मेरा प्रॉफिट कितना है? ए माइनस बी। कितना हुआ? ए माइनस बी 1,12,000 अच्छा टैक्स रेट 40% बोल दिया तो 1,12,000 का 40% कितना हो रहा है? इंटू 40% 44,800 किसका ऊपर? 1,12,000 का 40%। प्लीज कंप्यूट 1,12,000 का 40%। प्लीज कंप्यूट। वन लाख 12 का 40% आया 44,800। हाँ या ना? प्लीज बोलिएगा। हाँ या ना? आ रहा है कि नहीं? 44,800। अगर आ गया तो बोलिएगा हाँ। आ गया सबका? चलिए मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, कंप्यूट कीजिए।
হ্যালো हो गया সবাই করেছো প্লিজ हाँ या ना am I audible हेलो yes sir ओके हो गया ओके फाइन सबका आ गया ना रिस्पांस ठीक से नहीं आ रहा है ना रिस्पांस आ रहा है आ गया ना चलिए नेक्स्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,12 minus 44,800 67,200 57 है 200 then we add back depreciation then we at add back depreciation 50,000 50,000 तो हम लोग का आ रहा है कितना 1,17,200 70,200 है आ रहा है सबका आया हाँ या ना yes sir similarly if we move to the second machine लेबर मेरे को बेनिफिट एस्टिमेटेड सेविंग्स इन कॉस्ट कितना आ रहा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का कितना सेविंग्स आ रहा है मेरे को 2,20,000 20,000 आ रहा है सबको हाँ या ना क्वेश्चन में जाऊं क्या प्लीज बोलिएगा क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा क्या नो सर না স্যার না স্যার स्क्रैप কত আসছে आ रहा था 30,000 स्क्रैप कितना आ रहा था 30,000 तो टोटल मेरा सेविंग्स कितना हो रहा है 2,50,000 दोनों का ऐड कर लेंगे तो 2,50,000 सेविंग्स ये टोटल सेविंग्स 250 टोटल सेविंग्स कितना आ रहा है 2,50,000 उसका साथ में क्या ऐड कर रहा हूँ इनडायरेक्ट मटेरियल 25 पहले निकल चुका है क्वेश्चन में देखूं क्या क्वेश्चन में जाऊं क्या दिखा दे रहा हूँ नो सर no sir क्वेश्चन एक No, बार दिखा sir. दे रहा हूं मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आप लोग देखिएगा कितना आ रहा है 40,000 और स्क्रैप बाय 30 और मेंटेनेंस 48 और ये किधर ये तो ऊपर में आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल 25 30 मेंटेनेंस कॉस्ट 48 इनडायरेक्ट मटेरियल 25 डेप्रिसिएशन 50 समझ में आ गया यस सर आ गया 25,000 इनडायरेक्ट मटेरियल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 48 डेप्रिसिएशन 50 तो टोटल एक्सपेंसेस मेरे को कितना आ गया व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेंस we 1,23,000 derived 1,23,000 as total expenses okay and savings in cost is 2,50,000 2,50,000 দুটোর মধ্যে মাইনাস হয়ে যাবে এখানে Minus. আসবে হচ্ছে 1,27,000 2,50,000 मतलब 2,50,000 मेरे को कॉस्ट सेविंग्स है द टर्म यूजेस कॉस्ट सेविंग्स तो द कॉस्ट सेविंग्स इज 2,50,000 and the cost incurred is 1,23,000 so net profit before tax will be by deducting B from A we get net profit before tax 1,27,000 1,27,000 and tax rate is 40%. 1,27,000 please calculate 1,27,000 into 40% तो 50,800 आ रहा है मेरे को यस सर 50,800 50,800 तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट इसको शॉर्ट में पैट बोला जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को शॉर्ट में पैट बोला जाता है तो पैट कितना आ ওই रहा है দুটোকে মাইনাস করে ওখানে ডেপ্রিসিয়েশন माइनस कर देंगे तो 76,200 आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देन वो हम लोग ऐड बैक करेंगे सिमिलरली डेप्रिसिएशन 50,000 तो मेरे को नेट कैश इनफ्लो कितना आ रहा है 1,26,200 तो कौन सा वाला मशीन लेंगे मशीन 1 ना मशीन 2 सर मशीन 2 क्यों सर क्योंकि कैश इनफ्लो ज्यादा है कैश इनफ्लो ज्यादा है एनीबॉडी मशीन 1 लेंगे मशीन 1 अच्छा है मेरे को लग रहा है कोई कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे मेरे को मशीन 1 अच्छा लग रहा है मैं सही हूं ना गलत हूं एम आई राइट और रॉन्ग मेरे को मशीन 1 अच्छा लग रहा है मैं भी आदमी हूं मेरे से भी गलती हो सकता है मेरे को मशीन 1 अच्छा लग रहा है मैं सही बोल रहा हूं ना गलत प्लीज सर डोंट नो मतलब मैं मशीन 1 बोल दिया तो आप लोगों का चुप हो गया क्या मैं भी आदमी हूं गलत हो ही सकता है मगर लॉजिक हर टाइम सही होगा मेरे को मशीन 1 अच्छा लगता है आप लोगों को लगता है क्या मशीन 1 अच्छा है मेरे को लग रहा है मशीन 1 अच्छा है किसी को लग रहा है मशीन 1 अच्छा है सर नो सर
No, sir. No, sir. Any one of the student in this classroom, किसी एक स्टूडेंट को भी machine 1 अच्छा लग रहा है? अगर ना लग रहा है तो नहीं लग रहा है तो ना बोलिएगा प्लीज। लग रहा है किसी से? हाँ लग हाँ, रहा सर। है? नो, थैंक यू, ऑल ऑफ यू आर राइट। मशीन 2 ही अच्छा है क्योंकि इसका कैश इनफ्लो ज्यादा है, इसका कैश इनफ्लो ज्यादा है। योर लॉजिक इज राइट, मशीन 2 अच्छा है, कैश इनफ्लो ज्यादा है। समझ में आया? इस क्वेश्चन का नीच में एक तो नोट होगा, वो नोट नहीं दिया गया इधर, ठीक है ना? वो नोट इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में नहीं है, प्लीज नोट इट डाउन। मैं नोट दे रहा हूं अभी, ठीक है ना? मशीन 1 अच्छा है। इस टाइप का नेचर का सम में आपको एक तो कमेंट देना जरूरी होता है। इस टाइप ऑफ सम जब जिसका पास से आपका पास से डिसीजन मांगा, जिस सम में आपका पास डिसीजन मांगेगा ना, उसको एक तो आपको कमेंट देना पड़ता है, इट इज मस्ट। तो इस क्वेश्चन में कमेंट नहीं दिया गया है, तो मैं कमेंट लिख दे रहा हूं, आप लोग भी लिख सकते हैं कॉपी में। मशीन 2 will be purchased as the cash inflow of machinery 2 is more than that of machinery 1। इधर कमेंट बोलकर लिख दीजिएगा। और ऑब्जर्वेशन, लिख लिया इतना दूर तक सब लोग? यस सर। तो ये सम सबको समझ में आया, हाँ या ना? ये हाँ, सम सर। सबको समझ Yes, में आ sir. गया? ओके, सबको ना? कैन आई मूव? Yes, sir. ओके, थैंक यू। अच्छा एक बात बोलिए, सबको समझ में आ रहा है ना पूरा चीज? चलिए मैं रिकैप करने के पहले, आ रहा है ना समझ में, हाँ या ना प्लीज? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। थैंक यू। तो मैं एक बार आज का क्लास खत्म करने के पहले एक बार ये चीज आप लोगों को पढ़ने नहीं दिया था, एक बार इसको गो थ्रू कर दीजिएगा। अगर किसी का कोई क्वेरीज, डिफरेंस बिटवीन एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी का अंदर किसी का कोई क्वेरीज है तो रेज कीजिएगा, तो मैं समझा दूंगा, नहीं तो उसका बाद में क्लास को एंड कर दूंगा। স্যার বলছিলাম আগের দিনকে যে নেসেসিটি অফ ওইটা করাচ্ছিলেন, নেসেসিটি গুলো যে করাচ্ছিলেন ওর মধ্যে কিরকম কোশ্চেন আসবে, যে বড় বড় পয়েন্ট গুলো? নেসেসিটিটা একটু পড়ে রেখো, বেশি কোশ্চেন আসবে, ঠিক আছে তো? জাস্ট এমনি রিডিং এর জন্য। হ্যাঁ রিডিং এর জন্য বাই চান্স দেখো प्रोबेबिलिटी खूब, नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, मे बी अगर बोलेंगे तो आने का प्रोबेबिलिटी 10% है।
क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी 10% है। Depreciation wasting থেকে है- মানে आने का प्रोबेबिलिटी जैसे वेस्टिंग एसेट का आने का प्रोबेबिलिटी है 70 to 80%। शॉर्ट नोट। आज जो सम कराया, जो तीनों सम कराया, वो तीनों सम ही क्लास में जो डिस्कस कराया रादर, वो तीनों सम ही आने का, तीनों में से एक वैरायटी का सम आने का प्रोबेबिलिटी है 70 to 80%। समझ में आया? ডেপ্রিসিয়েশন এর ডেফিনেশন ওখানে স্ট্রেট লাইন মেথড, ডিমিনিশিং ব্যালেন্স মেথড, ওখানে এই আগের দিন যে ম্যাথ গুলো করা ছিল और मेथड ওগুলো गुलो আছে ওইগুলো वो হুম। सब थ्योरेटिकली पढ़ लेना। कभी पूछ देगा कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, देन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, देन यू विल राइट दैट वेरियस मेथड्स। মেথড গুলো খালি। हाँ मेथड गुलो खाली लिखे হুম। देना। আর এখানে এই এটা তারপর হচ্ছে ওয়েস্টেজ ভাই, এটা ওয়েস্টেজের হ্যাঁ। যে পার্টটা ছিল, তারপর এই হ্যাঁ। তিনটে ম্যাথ। তিনটে অঙ্ক দেখে নেবেন। একবার এটা একটু পড়ে নাও, যদি কারো কোনো কোয়ারিজ থাকে তো রেজ করো, একবার গো থ্রু করে নাও। এই টপিকটা আমি তোমাদের পড়তে দিইনি, वेस्टिंग एसेटটাও পড়তে দিয়েছিলাম। কারো যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে तो रेज करो। इस टॉपिक में किसी का अगर कोई क्वेरीज है तो एक बार रेज कीजिएगा, उसका बाद आज का क्लास खत्म कर दूंगा। किसी का कोई क्वेरीज है? पढ़े आप लोग क्या? पूछो तो हाँ या ना। तो किसी का कोई साउंड नहीं आ रहा है। हेलो प्लीज सेमी। हाँ Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Have you gone through this point topic? पढ़ लिया आप Yes, लोग क्या? sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी का कोई क्वेरीज है? किसी का कोई क्वेरीज है? No, sir. ओके। चलिए आज का क्लास सबको समझ में आया? किसी का कोई क्वेरीज है? सॉरी, आज का क्लास सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आया ना? प्लीज एक दो बोलिएगा, मेरे को अच्छा हाँ लगता है सर। सुनने। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट। आज के लिए इतना Thank ही। you, sir. Good night, sir. वेलकम Good night. वेलकम, थैंक यू। नाउ आई एम लीविंग फ्रॉम दिस क्लास। ओके, यू कैन आल्सो लीव।